Assalamu alaikum all. Welcome to yet another webinar series on jobs, careers, profession. Uh, Alhamdulillah, we have a very nice panel today. And let me introduce Dr. Asma Ali, जो कि आज का प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगी। आप में से बहुत से तो मिल चुके होंगे डॉक्टर अस्मा से। लास्ट ईयर 2019 का जो प्रोग्राम था हमारा डिनर का, उसमें डिनर तो नहीं कहूँगा, वो लंच था, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर साहिबा थी वहाँ पे और सबसे मुलाकात हुई थी उनकी। और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आजकल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एनईडी एनईडी का जो अलमनाई एसोसिएशन डीसी जी का जो सेक्टर है उसकी। डॉक्टर साहिबा, प्लीज यू टेक Thank ओवर। you. Thank you, Dr. Suhail, and Assalamu alaikum, everyone. This is Asma here. मैं especially to our panelists के जिन्होंने time निकाला on a weekend और join किया, and I hope कि ये session जो जिन students ने हमें join किया है, who are either about, like in their final years या third year में है, this will be helpful and useful for them. So a brief introduction of myself. My name is Asma Ali and I graduated from NED University in 1994 with a degree in civil engineering. And currently I'm a project manager as a consultant to Department of Transportation. और ये हमारा सेशन जो है इट्स गोइंग टू बी बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश, तो आपको जिस लैंग्वेज में भी मेरे पैनलिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि विच एवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल, अगर इवन मेरा क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, इफ यू वांट टू ऐड मोर, it's totally fine. So let's begin our program today with the introductions, and I have in alphabetical order with me Mr. Arshad Siddiqui, who is a senior engineer at Loya Associates, and he's the panelists. They are at hiring positions. They hire candidates or they hire engineers for their companies. And then we have Ms. Ghazala Farooq, who's also with the consulting company. And Ghazala, correct me if I am wrong. आपकी company आप अपना introduction दे दीजिएगा, but it's the it begins with ESSRI, right? It's Web Smile, SIR. SIR. Thank you. And then we have Ms. Soleha Kishwar, and she is a senior engineer at SMK, that she is also the co-owner. And then we have Ms. Shazia Hussain, who is also a senior engineer and co-owner at SMK Associates. So, but मैं request करूँगी कि अपना detailed introduction करवाएं. So let's begin with Arshad. आप please अपना detailed introduction करवा. Thank you, Asma. Thank you for introduction. I appreciate first your efforts towards this skill program. My name is Mohammad Arshad Siddiqui, and I have been working in consulting engineering firm since last 25 years. Recently, I am working with Loya Associate as a chief engineer structures. Ghazala, your turn now. My name is Ghazala Farooq. I have been working since graduation in 1994, so it's about 26 years in various firms across Karachi and in Islamabad also. So mostly as an structural design engineer capacity. Gradually, the responsibility of workload increased hota gaya tha. Currently, I am a principal structural engineer with SIR. Thank you. Thanks, Ghazala. Soleha, आप अपना introduction करवाएं. अस्सलामुअलैकुम, मैं सोलिहा किश्वर. मैंने भी 94 में पास आउट किया है और SMK एसोसिएट में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ. और मैं और शाजिया हम दोनों की एक अपनी भी कंपनी SS इंजीनियरिंग एसोसिएट, जिसमें वी आर वर्किंग एज अ पार्टनर. तो ज़ाहिर बात है ये हायरिंग और इसका हम लोगों का बहुत ही इस सिलसिले में कांटेक्ट रहता है और वी हैव द मेनी आइडियाज फॉर द स्टूडेंट्स. Thank you, Shazia. Yeah, Shazia, आप अपना introduction करवाइए. Yes. Assalamu alaikum. This is Shazia Hussain, Managing Director at SMK Associates, working as a structure design engineer since 1995, and I have almost 25 years experience of building designing. So my specialty is in buildings, is at building sites and
nowadays, IMO, which is one of the biggest group in Pakistan right now. Thank you, Shazia. So हम लोगों ने program ऐसे structure किया है कि around 40 minutes I have a list of questions that I'm going to ask, and I like each of the panels in the same order कि जिन्होंने introduction दिया है कि उस questions को answer करें, and then we'll take questions from the students. So my first question is this, that Arshad, when you are hiring, you are interviewing a candidate, what are the top 3 things that you look for unke resume mein, and when they come for the interview? अस्मा, जब भी कोई फ्रेश इंजीनियर हमारे पास इंटरव्यू के लिए आता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसमें, क्योंकि वो डिज़ाइन कंसल्टेंसी को ज्वाइन करने की नीयत से आ रहा है, तो सबसे बेसिक जो स्किल हम उसमें देखते हैं वो ये है कि उसको बेसिक कंसेप्ट उसके क्या हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उसके पास अभी सिर्फ जो एक्सपीरियंस है वो एकेडमिक है, उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं उस वक्त कि उसकी जो एकेडमिक बेसिक है वो किस तरह की हैं। हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली रिलेटेड होते हैं उसके एकेडमिक बैकग्राउंड से। तो मेरी स्टूडेंट में को यही एडवाइस होती है जब भी मैं उनके अपने कंसेप्ट को बड़ा क्लियर रखें, क्योंकि आप एक प्रोफेशन में आप इंटर हो रहे हैं तो यू शुड हैव द बेसिक कंसेप्ट। देन उसकी कम्युनिकेशन स्किल को हम चेक करते हैं कि उसको, क्योंकि एक टीम के साथ काम करना होता है, वो सोलो परफॉर्मर नहीं होता। तो जब वो किसी टीम में इंटरेक्शन करता है तो वो उस टीम के साथ इंटरेक्ट किस तरह कर सकता है, उसकी एबिलिटी इस तरह गैदरिंग में काम करने की है या नहीं, वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकता है या किसी की देना चाह रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है क्या नहीं। सेकंड उसमें ये होती है कि उसको बेसिक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की नो हाउ कितनी है, क्योंकि आजकल की इंजीनियरिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी इंजीनियरिंग डिपेंडेंट हो गई है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि किसी भी फ्रेश कैंडिडेट में होनी चाहिए, जिसका किसी प्रैक्टिकल नॉलेज से कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका बेसिक इसका एकेडमिक बैकग्राउंड से है। तो किसी भी स्टूडेंट को जब भी किसी इंटरव्यू में जाए वो 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखे। एक तो उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, दूसरी उसके पास इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, मैं डिटेल नॉलेज की बात नहीं कर रहा, और सेकंड उसमें जो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस जो उसका है वो उसमें होना चाहिए। Ghazala, what is your input? बिल्कुल, जो अर्शद ने कहा है आई सेकंड दैट, और उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं एक चीज़ ज़रूर देखती हूँ कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था, इसलिए कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप थोड़ा सा डिटेल करते हैं चीज़ों को। अगर आप उसी फील्ड में आ रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है उसका। थैंक यू Ghazala. Saliha, आपका और शेख जैसा, बट ऑफ कोर्स आप मुझे, मैं जो सही है एक बात है कि जब कोई सीवी आता है तो सबसे पहले मुझे ये होता है मैं पूरा सीवी रीड तो करती हूँ उनका ना, और उसमें मुझे ये होता है जो उसने क्लेम किया है अपने प्रोजेक्ट्स, चाहे वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हों या दूसरे, या उसने कहीं इंटर्नशिप की है, तो मैं उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन करती हूँ। प्रोजेक्ट था उसमें आपकी इनपुट कितनी थी, और अगर वो उसको जैसे कह देते हैं जी, अभी भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, हमने तो ये प्रोजेक्ट जो किया था ये तो टीचर ने करवाया था, मतलब टीचर ही करवा रहे हैं लेकिन आपने क्या कोशिश की ना। तो अगर आप अपने उस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं ले सके तो आप आगे की चीजें कैसे सीरियस लेंगे ना। आप एकेडमिक इसमें आपके पीरियड में हम तो यही देखेंगे ना कि जो चीज को उनको किस तरह मैनेज किया ना। तो ये सबसे पहली चीज जो मुझे, यानी क्योंकि वही वाली बात है, अर्शद वाली बात कि फ्रेश इंजीनियर है उससे हम कोई एक्सपीरियंस का तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अब जो उसने अपने एकेडमिक पीरियड में जो काम किए हैं, सीरियसनेस, इन्वॉल्वमेंट और उसका बिहेवियर कैसा रहा था, इसलिए मैं सिर्फ सीवी पे रहकर ये क्वेश्चन करती हूँ, और फिर उसके बाद यानी फिर मैं दूसरी बातें बताऊंगी। थैंक यू सालिया। एंड शाजिया, फाइनली आपका इनपुट क्या? मैं जो रेज्यूमे पहले अगर मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले देखती हूँ कि उसमें वोकैबुलरी नेसेसरी बहुत सारी चीजें बच्चे ठूंस देते हैं कि जो कि आपके वर्क से रिलेटेड ही नहीं होती।
शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, शुड बी वेल डिफाइंड जॉब रिलेटेड सीवी होना चाहिए। आप अपने स्किल्स को उसमें इनहेंस करें, आप बताएं, कोर्सेज बताएं, लेकिन एक्सेसिव, मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि एक्सेसिव वोकैबुलरी ना यूज करें। हाई फाई आप वही लिखें, नेवर एवर लाई इन योर सीवी। मतलब आप ये ना करें कि आपने बहुत लंबा लंबा लिख दिया और जब आप बैठे हैं तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप हमेशा जो है वो रेज्यूमे बहुत शॉर्ट होना चाहिए, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोर्टफोलियो आप अच्छा अपना दें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका सीवी होना चाहिए। ये मैं सीवी के लिए बता रही हूँ। और यही है कि एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, वो कैसा है कि बच्चे में कितनी कंसिस्टेंसी है, वो रेज्यूमे से नजर आ जाती है। आपका स्कूल का बैकग्राउंड, आपका कॉलेज का बैकग्राउंड, यही यही चीजें हैं जिसपे जो है सीवी के जरिए हम शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर इंटरव्यू। थैंक यू ऑल फोर ऑफ यू। तो मैं अब इसको ना मैं लिखती जा रही हूँ सो दैट आप स्टूडेंट्स बेनिफिट करें इसके आंसर से, और मैं समराइज करूंगी। सो बिटवीन द फोर ऑफ यू आपने कहा कि टॉप 3 थिंग्स और द टॉप स्किल्स जो आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर एकेडमिक जो आपने कोर्सेज किए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज यू विल बी वर्किंग एज अ टीम, एंड देन बेसिक, देन दी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया, और फिर देन यू हैव कि आपने जहाँ अगर इंटर्नशिप की है या आपने कहा है कि आपने थ्रू आउट योर एकेडमिक कैरियर आपने इन 4 years के अंदर चाहे वाटर रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट किए हो या ट्रांसपोर्टेशन के, वट एवर यू आर क्लेमिंग इन योर resume, you might be one of these panelists or others, they may ask you questions about those. एंड देन ये कि आपने सॉफ्टवेयर जो आजकल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर है तो उसकी भी नो हाउ बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, जस्ट कि आप कौन से सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैफिक में, वाटर रिसोर्सेज में कौन से आजकल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, करंट सॉफ्टवेयर. And then the Shazia ने input ये दिया, that was more related, and that was one of my questions as we move forward कि आपका CV जो है वो precise, concise और सही होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए. In the terms कि whatever you are saying, you should know about those skills, and don't lie in your CV. And then yes, okay. So my next question again, starting with Arshad, कि what are the top 3 things जब आप किसी को इंटरव्यू कर रहे होते हैं that discourages you? Of course you are a senior engineer, you have worked, all 4 of you have worked with so many people, that आपको क्या चीज डिस्करेज करती है किसी को भी हायर करने में? अस्मा, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब कुछ स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनमें ऐसी फीलिंग फील होती है कि अगर आप उनको कोई चीज़ गाइड करते हैं तो उनमें उसको एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं पाई जाती, वो उसमें रिजिड बिहेवियर या उसमें डिबेट क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसी भी फ्रेश इंजीनियर के लिए, क्योंकि उसको सीनियर की जो एडवाइस है आई थिंक कि उनको फॉलो करना चाहिए बजाय इसके कि वो उसको डिबेट करे, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है, ना उनके पास इनफ नॉलेज है ना इनफ एक्सपीरियंस है कि उस चीज़ की निटिग्रिटी को समझ सके। तो मेरा ख्याल है कि सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई रिजिडिनेस मौजूद हो। सेकंड ये होता है कि किसी भी जब आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन किया जाता है तो उसके 2 वेज होते हैं, या तो आप उसको आंसर करते हैं या आपको उसका आंसर नहीं आता। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो इट इज़ बेटर कि आप उसको कहते हैं कि मुझे नहीं आता, बजाय इसके कि आप उसको इनएप्रोप्रिएट रिप्लाई आप उसका दें जो फर्दर आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो नॉलेज है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो दूसरी ये हो गई, और दूसरी आपकी जो थर्ड है जो कि मैंने पहले उसमें भी कहा था कि आजकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड जो आपका होता है उसमें आप उसको उसकी जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं आप उसको करें और उसके मुताबिक उसके उसके ऊपर थोड़ी कमांड हासिल करें। तो अगर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बड़े वेल नोन हैं, जो इंडस्ट्री में हर पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, लाइक ईटैब हो गया जिसको सब जानते हैं कि ये बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होगी तो ये भी आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बिना पे आपका अगर सिलेक्शन होने जा रहा होता है तो वो रुक जाता है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट को या फ्रेश कैंडिडेट को इन तीनों चीज़ों को बड़ा केयरफुली स्टडी करना चाहिए और अपने वीकनेसेस को जो है वो एड्रेस करना चाहिए। Thank you, Arshad. So I'll add to my question, and then it's for all 4 panelists. कि आपके यहाँ कोई like when you hire an engineer in your company, so आप
उसका कितना वो टाइम पीरियड कितना होता है ड्यूरिंग विच यू इवेल्युएट, लाइक 3 months, फर्स्ट 90 days जिसमें आप इवेल्युएट करते हैं कि हाउ दैट candidate is that engineer or your new hire is working with the others, and then वही rigid behavior आप उसको observe करते हैं, तो वो कोई होता है आपका probation period, not the probation period is not the right word, but the for the first 3 months, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं जी thank you, you are not for you're not a good employee for us. Whenever जब इंटरव्यू हम फील करते हैं कि उसमें वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम उसको रिकमेंड ही नहीं करते इंडक्शन के लिए। तो एट द बिगिनिंग फर्स्ट स्टेप में ही वो जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। गजाला, आपका इनपुट क्या है इसमें? मोस्टली ये है कि जो एटीट्यूड होता है इट केम थ्रू, आप इंटरव्यू में ही मोस्टली पता चल जाता है कि होगा क्या। बाज़ बच्चे होते हैं, अगर हमको लगता है कि ये कर लेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि सॉफ्टवेयर की बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन एक जो बहुत बुरा ट्रेंड मैं आजकल के बच्चों में देख रही हूँ, जो निकल के आ रहे हैं रीसेंट ग्रेजुएट, इनको सिर्फ इस चीज़ से, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, कि वो इस बात को ज़रूर अहमियत दे रहे होते हैं कि हमें मार्क्स लेने हैं और हमें पेपर पास करना है और हमें डिग्री लेनी है। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन लर्निंग, और ये इतना बड़ा डेफिशिट आगे बन जाता है, जाके आप ग्रो नहीं कर सकते। बच्चों से पूछो, इनको बेसिक टेक्स्ट बुक्स के नाम नहीं पता होते हैं। कहते हैं कि टीचर्स ने हमें लेक्चर से पढ़ाया, हमने लेक्चर से पेपर दिए, हमें इतने नंबर आ गए, हमारा जीपीए इतना हाई है जो है, लेकिन अदरवाइज जब उनसे पूछो कि तो ना उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो एक बॉक्स के अंदर जो उनको टीचर ने बता दिया उसके बाद वो उससे बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। एक जनरल जो कॉन्सेप्ट जैसे हमें याद पढ़ाया गया था, आई डोंट नो कि दिस इज जो है वो हमारे पैटर्न की चेंजिंग आ गई है पढ़ाने के, या बच्चों ने एफर्ट करना छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हो रही है और कंसिस्टेंटली हो रही है। पूरी जो पिछले 10-12 साल से बच्चे निकल के आ रहे हैं, और ये उनके लिए इतना बड़ा डिसएडवांटेज बाद में बनता है। वो आ भी जाएंगे, जॉब ज्वाइन भी कर लेंगे, लेकिन फिर वो जो एक विलिंगनेस टू लर्न होती है ना, या तो उनका वो पीरियड बहुत बढ़ जाता है। और फिर एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंस एक लेवल तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब आप अपने सीनियर्स को नलिफाई करना शुरू कर दो, उनकी बात नहीं सुनो, अर्शद की बात सही है, वो चीज़ जो है ना वो इंटरव्यू के वक्त नहीं आ रही, लेकिन वो थोड़ा सा लर्न करते हैं और दे थिंक के उन्होंने सब कुछ कर लिया। हम 25 साल बाद भी कहते हैं कि हम अभी सीख रहे हैं, और इन लोग के लिए जो है ना 1 साल में काफ़ी होता है कि वो हमें सब कुछ आ गया है, देयर इज़ नथिंग मोर टू लर्न इन दिस फील्ड। तो ये बहुत गलत बात है। सोलेहा, आपका इनपुट क्या है इस बारे में? तो फर्स्ट 3 नेगेटिव 3 थिंग्स दैट व्हेन यू आर और मोर व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग समवन कि आप कहते हैं कि नहीं जी इसको सेकंड इंटरव्यू नहीं होगा। मुझे वाकई बड़ी हैरत होती है। एक तो ये कि मैं कहती हूँ कि एनईडी में भी कोई ग्रूमिंग क्लासेस होनी चाहिए। मतलब जब ऑलरेडी कि आप एक इंजीनियर बनने के बाद आपकी पर्सनालिटी में भी कोई ऐसा ग्रूम आना चाहिए जो आपकी एजुकेशन को, आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करे। आप इतनी बड़ी डिग्री लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, फिर जब ये बच्चे आते हैं तो उन्हें जहन में होना चाहिए अब हम किसी स्टूडेंट लाइफ में नहीं जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो वाकई मुझे बड़ा एतराज़ होता है कि उनकी ड्रेसिंग वैसी नहीं होती। ये सोचें कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब हमें मतलब हम अपने दौर से अपनी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब हम इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते थे। उस दिन का ड्रेस और उस दिन की चीज़ अलग होती थी, वो वाली नहीं होती थी जो हम फ्रेंड्स के साथ किसी गैदरिंग में पहन रहे हैं या गेट टुगेदर में पहन रहे हैं। तो मतलब ये उनका ये होना चाहिए पहली चीज़। फिर जब वो बैठते हैं तो वो ये सोचे कि सब वो सीनियर के सामने बैठे हैं। मतलब मैं मुस्तकिल ये देखती हूँ जैसे हाथ में मोबाइल है उसे यूज कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, नहीं उन नजर आए कि भाई आप शो इंटेंशंस नजर आए ना। दूसरी चीज इसी से पता चल जाता है कि मतलब उसका क्या एटीट्यूड है ना। फिर वो तीसरा यही है कि रिजिडनेस वाकई नहीं होनी चाहिए। इन दोनों से मैं एग्री करूंगी कि आप दूसरे की सुनेंगे तो फिर कुछ आप सीखेंगे ना। जब आप सुनेंगे नहीं और अपने ही आपको सब कुछ करेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप समझें कि सामने वाला सीनियर है, उसका एक एक्सपीरियंस है। फिर
उसके अंदर, और जब ये सुनने का आदि होगा तभी वो टीम वर्क कर सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। कोई यहाँ पर्सनली कुछ भी नहीं चल रहा, और उसने तो आगे हमने कहीं मीटिंग में भेजना है, कुछ करना है, तो उसको तो दूसरों की सुननी है। क्लाइंट की तो हम लोग कितनी सुन रहे होते हैं, ये उसी वक्त पॉसिबल है ना कि जब उसके अंदर सुनने की आदत होगी ना। इसलिए मतलब मुझे सबसे पहले तो मैं खुद कहूंगी कि एनईडी का तुम्हारा तो इतना ज्यादा रहता है कि स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग क्लासेस लें, उन्हें बताएं, और यूनिवर्सिटीज में भी तो होती है ना, इसमें भी होनी चाहिए, ड्रेसअप करने का तरीका बताना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और यही चीज है कि फिर आप इंटरव्यू के वक्त इन चीजों का ध्यान में रखें अपना। शाजिया, आपका इनपुट क्या है इस बारे में? जी अस्मा, मैं भी यही कहूँगी, आई फुली एग्रीड विद सोलेहा कि सबसे पहले अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चे का ड्रेसिंग से शुरू करती हूँ कि वो कितना ऑफिस एनवायरनमेंट से मैच कर रही है उसकी ड्रेसिंग। ऐसे तो नहीं कि वो उठकर आ गया। और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक हद तक अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव एटीट्यूड ना शो करें, और जो है बल्कि, और मैं एक चीज ये देखती हूँ कि ईगरनेस नजर आनी चाहिए कि आप कितना गेन करना चाहते हैं। आप आर्ग्यूमेंट्स पर आ जाते हैं, बाज बच्चे आर्ग्यूमेंट्स पर आ जाते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। तो आप जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक सीनियर के साथ जो है बिला वजह की बहस और ये वो के इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ये कि पूरा अपना फ्रेंडली एक वो शो करें अपना बिहेवियर, क्योंकि आपको आगे जाके एज ए टीम वर्क काम करना पड़ता है एज ए मेंबर। तो आपका जब आप एग्रेसिव वो करेंगे तो मैं कभी भी ऐसे बच्चों को कभी रेकमेंड नहीं करती। और मैं तो पहले अगर किसी की प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होती तो शायद मैं आगे इंटरव्यू कंटिन्यू भी नहीं करती, क्योंकि जिसको जो ड्रेसिंग का जिसको सेंस नहीं है वो आगे जाके कितना भी वो कर ले, वो ऑफिस एनवायरनमेंट को मैच नहीं करेगा। थैंक यू। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन चलें, लेट्स I'll ask this question first कि आप सॉफ्ट स्किल्स, अरशद कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिस पे, अच्छा नहीं, बिफोर दैट मैं जरा समराइज कर दूं कि हमने कहा कि कौन सी नेगेटिव, व्हाट गोज नेगेटिव अगेंस्ट यू, लाइक व्हाट गोज अगेंस्ट यू और द नेगेटिव ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यू वोंट क्वालिफाई फॉर द सेकंड इंटरव्यू। उसमें तो ये था कि इफ यू आर शोइंग अ रिजिड बिहेवियर, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू योर सीनियर्स. Number two, that if you are asked a question about anything, or agar if you don't know the answer, just say no, that you don't know the answer, and it is fine. Even is like I am an adjunct faculty, Dr. Sohail teaches. If students ask us question, if we don't know that, we just say that okay, hum try karenge iska answer find out karne ke liye. We do not know the answer at this point. But iska matlab ye nahi hai ki aap tayari karke na jaye. You do your best and have a basic knowledge of the software. I mean, just Google it, or I don't know कि आप लोगों के क्या resources हैं, but go and find out कि आजकल structure में क्या software use हो रहे हैं, different industries में क्या software है, और उसकी basic knowledge लेके जाएं. And you should know कि आपकी education जो है वो आपकी personality से reflect करे. If you are going and if you are claiming, at least आपको पता होना चाहिए हमने books कौन सी पढ़ी हैं. Just don't, मतलब ये कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि हमने टीचर ने हमें नोट्स दिए तो हम नोट्स पढ़ के चले गए. एम्फसाइजिंग ऑन योर GPA rather than on your education, that is not a positive thing. And then don't be overconfident, listen to your seniors and be respectful to them. And this applies in our general life as well, कि when we are speaking, when we are in a group, आप हर वक्त अपना फोन देखते ना, especially during the interview, that is not acceptable. और ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. पे अटेंशन when you are answering the question, pay attention when you are listening the question. Of course answering the question तो आप attention दे ही रहे होंगे, but when you are आपको question पूछा जा रहा है, आपकी body language and of course flexibility होनी चाहिए आपकी personality में. Don't be underconfident or don't be overconfident. अच्छा, तो अरशद आप कौन सी soft skills recommend करेंगे? For example, to me eye contact is the most important. if कोई मुझसे बात कर रहा eye contact नहीं है तो that is a no for me. आप बताइए बेसिक स्किल्स अरशद. देखिए अस्मा, बेसिक स्किल्स में तो यही जो चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं, यही बेसिक स्किल्स में आ जाती हैं कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं
तो आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 एक तो ये कि आप ये सोच के जाएं कि आपको ये जॉब गेन करनी है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी चाहिए। और उस रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपकी वही चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके कंसेप्ट बड़े अच्छे होने चाहिए। टेक्निकल नॉलेज आपको जो भी आपको जितनी भी है, मैं ये नहीं कहता कि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जितनी नॉलेज आपके पास है वो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपकी अपीयरेंस जो है वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल होनी चाहिए, और ना उसमें कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो आप, ना आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें। यू आर अ ग्रेजुएट इंजीनियर, यू हैव द गुड नॉलेज, यू हैव द गुड बैकग्राउंड एंड यू हैव द साउंड एजुकेशन। तो आपको अंडर एस्टिमेट अपने आप को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को वेल ड्रेस रखें, वेल कॉन्फिडेंट रखें ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और जो आप पहले जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है आप उसको समझें कि वो पूछ क्या रहा है आपसे, और अगर आप उसका टू दी पॉइंट जवाब आपको पता है तो आप उसको अटेम्प्ट करें, और अगर आपको नहीं आता तो आप उसमें हिट एंड ट्रायल ना करें, आप कह दें, क्योंकि उस वक्त ज़रूरी नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब आपको पता हो। ठीक है, तो यही हैं सारी स्किल्स जो आप में होनी चाहिए। और गजाला आप क्या रेकमेंड करेंगी? एंड आई मीन द सॉफ्ट स्किल्स। आपने एक ड्रेसिंग कहा एंड राइट के लाइक यू नो एंड देन शोइंग द कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट। सॉफ्ट स्किल्स में जाहिर है मैनर, आप किस तरह आए हैं, बात किस तरह कर रहे हैं, जो है आपकी आपका बेसिकली एटीट्यूड क्या है, उसके अलावा मजीद। सालेहा आप क्या सॉफ्ट स्किल्स पे आप क्या एम्फसाइज करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने मतलब जैसे वही पहले भी डिस्कस किया कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और मुझे नज़र आए कि वो अटेंशन दे रहा है। मैंने कहा मुझे ये बहुत वो लगता है कि जैसे कि आप जो पोज कर रहे होते हैं, सुन नहीं रहे, ये चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कोई भी सीनियर पसंद नहीं करता। और वैसे लेकिन ये मैं इससे हटकर कहूँगी कि ना जब कभी भी इंटरव्यू देने जाए ना, जिस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर जान के जाएं कि वहाँ पर क्या वर्क होता है, वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं कि बस आप इंजीनियर हैं इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं, नहीं, वो कंसल्टेंसी है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए, ताकि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसका मेन डोमेन क्या है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना। क्योंकि तुम्हें पता है इसमें भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं, कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, या आप किसी सॉइल उसमें डिजाइनर जाते हैं, तो उसका मेन डोमेन क्या है, आपको उसका बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। एंड शाजिया आपने इनपुट दिया था, बट डू यू वांट टू एक्सपेंड ऑन टू दैट? आपने कहा था कि हाँ, मैं अस्मा यही कहूंगी कि देखें, इंटरव्यू देना भी एक आर्ट होता है। हर अच्छा स्टूडेंट अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो इंटरव्यू देने से सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपकी हर चीज उस पर चेक हो रही होती है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका ड्रेसिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जॉब रिलेटेड स्किल्स, हर चीज देखी जाती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंटरव्यू किसी चीज के लिए जाएं तो आप पूरा प्रिपेयर होके जाएं उस इंटरव्यू के लिए। ऐसे नहीं कि आप बस उठकर आगे जी और वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं। आप उसको टाइम दें, आप उसको अटेंशन करें, उसको सीरियस लें और फिर इंटरव्यू देने जाएं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपके सामने। और इंटरव्यू एक आर्ट है, उस पे मेहनत करनी चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए बच्चों को। फर्स्ट आपकी प्रेजेंटेशन होती है, और जो है वो जितनी अच्छी आप देंगे आपका प्लस पॉइंट है। Thank you. So again, I'll summarize this question. So I asked the panelists about what are the soft skills that you want our students to learn when they are going for the interview, and as well as for, jab unke apne career mein. So the first thing is this, that know your company, know the workplace, know the company that jahan aap ja rahe hain interview dene ke liye, right? You Google, go to their website, see what they do, what are the current projects that they are working on, what is the working environment there, right? And then आपकी प्रोफेशनल अपीयरेंस होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साफ सुथरे कपड़े पहन के नहा धो के जाएं, बहुत अच्छी बात है।
and don't underestimate yourself. Be confident. You are an engineer. You invested your time, you invested your energy, you invested your money in getting of course, you know, NED University is one of the ABET accredited. जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं और evaluation होता है आपकी degrees का, आपकी transcript का, so it matches with the curriculum and the courses that are taught here. So, you know, don't take it lightly, don't take it easy. Just, you know, you have the knowledge, you have the education, but, you know, just make आप अपनी personality से ये बताएं that it should reflect that. And then the manners of your appearance when you are talking, when you're speaking, and body language. Know your workplace and interview. As Shazia said, that interview is an art. So try to excel that art, even when you are, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये like I think if I give one tip to the students कि आप before going to the, आप अपने group of students के साथ, अपने friends के साथ, एक दूसरे के साथ ये conversation कर सकते हैं. You know, even doing a small presentation, because the presentations give you that confidence when you're speaking in public. So those were the soft skills. अच्छा, अब हमने इंटरव्यू की तो बात की, and then the next thing is this कि अरशद आपके पास एक पोजीशन के लिए 5 CVs आए हैं, resumes आए हैं, right? Which resume will attract you the most? आप कहेंगे yeah, this is the top candidate, इसको मैं सबसे पहले इंटरव्यू करता हूँ, और अगर इस कैंडिडेट ने, if she or he passes this interview, that will be my employee. तो वो कौन सी, like how the format of the resume of the CV, what skills do they show it? आपके पास 5 में से जो पहला, जो मोस्ट टॉप रेटेड होगा CV resume, उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, या कैसे क्वालिफाई करेगा? देखिए अस्मा, सबसे पहली चीज़, जब हम इंटरव्यू में कॉल करने से पहले हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, ऑफ कोर्स उसमें पहला हम उसका देखते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड की रेटिंग क्या है, उसका GPA कितना है. तो वो GPA हम एक अपना मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं कि हम इससे कम या इससे लो जो GPA होगा हम उसको कॉल नहीं करेंगे. पहला हम उनको वेटेज देंगे जिनका GPA हाई है. सेकेंडली हम देखते हैं कि वो जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है, वो सालिया की बात से मैं एग्री करूंगा कि उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो जिस जॉब पे या जिस कंसल्टेंसी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ वर्क नेचर क्या है. तो सेकंड जो चीज़ हम उसकी जज करते हैं कि उनका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो उससे मैच करता है या नहीं करता. इसकी मैं एग्जांपल ये दूंगा कि अगर उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है और वो डिज़ाइनिंग की फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मैच नहीं करता वो. तो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस फील्ड में वो आपकी टेंडेंसी को शो करता है. तो पहले मैं GPA को चेक करता हूँ, सेकेंडली मैं उसका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको चेक करता हूँ, और थर्ड जो चीज़ है वो ये होता है कि उसका CV जो है किसी भी कैंडिडेट का वो अननेसेसरीली लोडेड ना हो, टू द पॉइंट हो. जितनी स्किल आपके अंदर मौजूद हैं या जितनी आपकी बैकग्राउंड है, आप उतना ही अपने CV में आप उसको शो करें. अननेसेसरी चीज़ों से आपके नेगेटिव मार्किंग में बढ़ती है, वो कोई इम्प्रेसिव नहीं होता. तो ये 3 चीज़ें मैं चेक करता हूँ किसी भी कैंडिडेट के CV को जज करते हुए. गजाला, आपकी क्या एडवाइस है? What is the top rated resume for you when you are shortlisting the for interview के लिए? GPA, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, एंड इफ अगर कोई आप तो मोस्टली बच्चे करते हैं इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप उसने कहाँ की है और किस चीज़ में की है? सालिहा, आपका क्या इनपुट है? अच्छा देखो, ये बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने, जैसे हम GPA देखते हैं ये सब, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में जो है ना जो GPA और जो रिजल्ट है ना, वो बच्चों को इतना ज्यादा पोर्ट्रे नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन फिर भी मतलब मैं समझती हूँ कि ना कंसिस्टेंसी नजर आए, यानी आप, क्योंकि वहाँ आपका मैट्रिक का भी उन्होंने लिखा होता है, इंटर भी लिखा होता है, फिर NED के भी लिखे होते हैं, एक कंसिस्टेंसी होती है. तो इसका मतलब इस बच्चे के अंदर टैलेंट है, कहीं पे अचानक उसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ गया. एक चीज ना. अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद जो है, जब वो जो उसने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिया है, उसमें भी हालांकि मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिए जा रहे होते हैं तो कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं, ये देखा जाता है कौन सा ग्रुप बन रहा है, कहाँ पे लिए, हर एक को इतनी हाउनो नहीं दी जा रही थी. नॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई इतना ज्यादा आपको गाइड नहीं किया हुआ, तो आप प्रोजेक्ट वो ले लेते हैं जो भी आपको समझ मिल रहा है ना, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं ना. सही है. लेकिन अब आपने जो भी किया, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये मैटर करता है कि अब आप ये बताइए जो आपने किया है वो आपने खुद किया है या नहीं.
मतलब उसके बारे में अगर वो अच्छा बता सकता है तो इसका मतलब है कम से कम जो काम कर रहा है वो इंटरेस्ट से तो कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ हम तो खुद भी अपने लिए भी कहेंगे कि पढ़ा कुछ, प्रोजेक्ट कुछ, और फिर आए किस लाइन में ना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे फिर जब आते हैं तो उन्हें पता है नहीं जी मुझे तो डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्ट है, नहीं मुझे साइड पे ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर वो बल्कि एमबीए करके चलो किसी और उसमें चले जाते हैं, मैनेजमेंट में ज्यादा है। लेकिन ये है कि अब आपने वो कर लिया, जब अब आपको मौका ये मिलता है कि आजकल इतने ज्यादा दूसरी एक्टिविटीज हैं, इतने ज्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं, तो अब कम से कम वो तो आप अपने इंटरेस्ट के चूज कर सकते हैं। आप देखें कि आईईपी, एनईडी कितने मुस्तकिल कराता रहता है ना, तो अब आप अपने इंटरेस्ट की चीज को उसमें सीखने के लिए आप इन चीजों को जरूर अटेंड करें, क्योंकि हर चीज से आपकी नॉलेज बढ़ती है और वो नॉलेज नजर आती है उसकी पर्सनैलिटी में। तो इसलिए मतलब मुझे कि ठीक है अब आप आगे आए हैं तो अगर आपको डिजाइनिंग में जाना है, किसी चीज में जाना है, उससे रिलेटेड अब आप नॉलेज तो लेना शुरू करें, अब उससे रिलेटेड आप सेमिनार्स तो अटेंड करें, ताकि फिर वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आएगा, वो चीज फिर नजर आएगी। और सीवी में अगर आप कोई अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड हो, क्योंकि देखो हम भी जब कोई रखेंगे तो हमें सिर्फ एक ये नहीं है कि अच्छी जीपीए का एक इंजीनियर चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जिसके अंदर मैनेजमेंट हो, जो हमें टाइम पे प्रोजेक्ट दे, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो क्लाइंट से मीटिंग कर सके, आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग कर सके। तो हमें ये हमारे लिए जरूरी है कि उसके अंदर वही है कि वो टीम वर्क उसे करना आता हो, ये कैपेसिटी और उसका इंटरेस्ट भी इससे रिलेटेड हो। And thank you, Salia. And then हम जब मैं इसको summarize करूँगी, so probably I'll give more points or I'll ask probably more questions to you guys. शाजिया, आपका क्या input है कि अगर आपके पास 5 CV आए हैं, which is the top rated CV for you? अच्छा अस्मा, सबसे पहले सीवी में अगर डिपेंड करता है कि मैं किसी सीनियर का ले रही हूँ या मैं किसी फ्रेश का ले रही हूँ, ठीक है। वो सीवी पे अगर किसी फ्रेश का है तो वो बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, उसकी हल्की फुल्की स्किल्स जो है उस सीवी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसके फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि उसका क्या इंटरेस्ट है। ये इसलिए चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप उससे थोड़ा सा उसकी पर्सनालिटी के बारे में जज कर सकते हैं। मोर और लेस तो आपका इंटरव्यू में ही होगा, लेकिन ये है कि सीवी से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आपके इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कैसे हैं, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा आपको करें डिफाइन और शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो। सीनियर लेवल पे जाएंगे तो मैं फिर सिर्फ उसका जो है एक्सपीरियंस ही देखती हूँ कि उसने किस पे वो किया है, और कुछ चीजें पिक करके जब इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो फिर उसी पर डिस्कशन होता है प्रोजेक्ट बेसिस पर। दैट्स इट। So okay, so here I have summary कि अगर let's, and my question was this कि अगर आपका पास एक position के लिए multiple resumes आए हैं या CVs आए हैं, so what is your selection or your shortlisting criteria? क्या आप कहेंगे कि this is the first one, I'll go with this, or second one? So of course every company has a minimum GPA criteria. So अगर आपने अपना GPA दिया हुआ है वहाँ पे तो अपने CV में, so that's important. And then ये कि आपका final year project क्या था, तो describe that final year project and describe it so that the other who is reading the CV knows that कि वो आप ही ने लिखा है और वो आपने काम किया है, right? You do not just don't copy and paste. And unnecessarily loaded नहीं होना चाहिए. It should be precise, and this is for the fresh graduate students who are seeking the job for the first time. And आपका field of interest क्या है, आपने और क्या skills acquire की हैं throughout your academic career, और internship अगर आपने कहीं की है तो show that और बताएं कि आपने क्या काम किया था during that interview. And then one thing that Soliha pointed out कि consistency होनी चाहिए. If you are listing your education from high school और फिर उसके बाद मैट्रिक होता है हमारे, फिर इंटर, और फिर उसके बाद अगर आप अपना GPA NED यूनिवर्सिटी का शो कर रहे हैं, that should be a consistency, right? And that gives a hint कि भाई ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है और उसने मेंटेन किया है NED यूनिवर्सिटी में। फॉर सम रीजन अगर आप मेंटेन नहीं कर सके, that is all right as long as you know your work well, you have that education. And then and somehow if you have managed a small, अगर even आपने अपना जो ग्रुप था, प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का या थ्रू आउट योर करियर, अगर आप लोगों ने कोई यू वर्कड एज अ ग्रुप, तो उसमें आपका इनपुट क्या था, एंड वर यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर इन दैट फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. सो अगर आपने ये किया था, हाईलाइट दैट.
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहाँ पर जिस तरह से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करवाते हैं तो हम एक ग्रुप को हम कहते हैं कि हु विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजर. So we don't expect that person to do all the technical work. We expect that person to have a very good communication, deliverables time पे है. तो आपने जो आपका जो भी input था in your project group highlight कर दें. Okay, so that was about the resumes and the interview skills and all that. Now this is one question, Arshad, कि जब आपने let's say किसी को hire कर लिया, now that person starts even at the hiring, जब interview के वक्त या बाद में, what is the gap that you see? जो आप ये चाहते हैं, when they are हमारे curriculum में या हमने उनको जो पढ़ाया है versus when they start working. What is the gap that you see and what is your advice कि आप उस gap को fill करें? चाहे वो technical हो, चाहे वो soft skills हो, चाहे वो management में हो, where do you think that we should give that additional qualification, additional education to our students when they are still studying so that they can excel in their field? तो gap को identify करो और अपनी advice दे. अस्मा, आजकल जो फीलिंग आती है जो फ्रेश इंजीनियर्स के साथ हम डील करते हैं, तो उनमें एक तो ये है कि जो बेसिक नॉलेज है वो पहले जैसी नहीं रही. अब इसमें बहुत सारे रीज़न आ सकते हैं. स्टूडेंट के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हमारे सिस्टम की ख़राबी हो सकती है, हमारे टीचर्स की थोड़ी सी लैकिंग हो सकती है. बट मुझे ये फील होता है कि इन तमाम शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद हमारा जो स्टूडेंट है वो इस काबिल और इस क्लास में लाई करता है कि उसमें वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आगे जब हम उनको ट्रेन करते हैं तो उसको ये कहना चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करता है चीज़ों को. उसको टेक्निकल बैकग्राउंड वो उसके पास होता है, सिर्फ उसको स्किल को उसकी टेलर करने की ज़रूरत होती है. अगर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा सा ले तो वो ज़रूर उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है जो हम उसको ट्रेनिंग में उसको बताते हैं. तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में वो उस सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है. बस उसके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत है. और इसमें दोनों का हाथ है. इसमें स्टूडेंट की अपनी भी एफर्ट्स चाहिए और जो उनको टीच कर रहा है उनकी भी एफर्ट्स चाहिए. और ऑफ कोर्स जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो जो उनके सीनियर्स हैं उनको भी थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए. थैंक यू. गजाला, आपका इनपुट क्या है? लेकिन बिफोर यू बिगिन, मुझे याद है कि आपने मुझसे एक दफ़ा मेंशन किया था कि आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं व्हेन दे आर सीकिंग अ जॉब, और फॉर एग्जांपल यू गेव मी द एग्जांपल ऑफ बिम सॉफ्टवेयर, राइट? यू सेड कि वो उनको पता होता है कि जी ये की प्रेस करेंगे तो ये होगा और वो की प्रेस करेंगे तो वो होगा. दे हैव द नो हाउ ऑफ द सॉफ्टवेयर, बट दे डू नॉट नो कि इसका व्हाट इज द इंटेंट, लाइक सॉफ्टवेयर है क्यों और उसका काम क्या है. So again, identify the gap and give advice to the students. ये चीज़ बहुत कॉमन है. स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी करवाया जा रहा है, अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इन अबंडेंस अवेलेबल है. अब इन लोग के पास कोई ये वाला एक्सक्यूज नहीं है कि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है जो लर्निंग की है. एक तो मुझे लगता है कि जो एक वो होता है ना सीकिंग वाली चीज के आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, टीम वर्क मुझे है कि टीम वर्क होना चाहिए, लेकिन एक अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं. उसके रिसर्च वाला जो ऑप्शन होता था कि हम देखते थे कि हम उसको किस तरह से करेंगे हैंडल, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. वो इंडिविजुअल एफर्ट खत्म होता जा रहा है. स्पून फीडिंग वाला ज्यादा हो गया है. बता दिया, सीनियर ने बता दिया, टीचर ने बता दिया, हमने कर लिया उसको. वैसे ही अपना इंडिविजुअल जो एक एफर्ट था वो खत्म हो रहा है. उसको वापस लाने की जरूरत है. वो किस तरह से लाया जा सकता है. फिर दूसरी चीज ये कि सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, लेकिन जब आपके पास सॉफ्टवेयर वो जिसको आप जो इनपुट देंगे वो आपको वैसे ही रिजल्ट उठा के देगा. आप ईटैप्स का नाम लिया था अर्शद ने, ईटैप्स बच्चे यूज करते हैं. अगर हार्डली में मुझे नहीं जो है ना इतने सालों में कोई सिंगल बच्चा ऐसा मिला है जिसने ईटैप का मैनुअल पढ़ा हुआ हो. जो है आपको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, जबकि हमें जो है प्रोग्रामिंग स्किल इज अ पार्ट ऑफ अवर कैरिकुलम. हमें वो करवाई जाती हैं, हमें करवाया भी गया था. अगर अस्मा को याद होगा तो बल्कि यहाँ जो बैठे हैं अस्मा है, शाजिया, अरशद है, हमें प्रोग्रामिंग करवाई गई थी. उस प्रोग्रामिंग को हमने अपने एग्जाम्स में यूज किया था, हमने अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज किया था.
और वो चीज जब उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, तो अब जब दौर है कंप्यूटर का, तो वो कैसे खत्म हो गई? बिल्कुल, Somehow गजाला we की have बात to बिल्कुल reintroduce सही है। it. गजाला की पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हम लोग जब फील करते हैं कि इंजीनियरिंग जजमेंट का एलिमेंट खत्म होता जा रहा है। अगर आप आप किसी भी सॉफ्टवेयर का मैनुअल देखें तो उसके टॉप पेज पे लिखी होती है, एक बोल्ड लाइन होती है कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स हैं वो सुपरसीड हो जाते हैं इंजीनियरिंग जजमेंट के आगे। तो इंजीनियरिंग जजमेंट का एलिमेंट होना चाहिए, जो कि आजकल नज़र नहीं आ रहा। कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। इवन जो बच्चे 2-3 साल जॉब्स करके भी आ रहे हो, तो उनके पास भी नहीं होता है। एग्जैक्टली। वो 1 घंटे में आपको मॉडल बना के दे देंगे बिल्डिंग का, लेकिन उसकी यानी इस हद तक मैं एक अगर एग्जांपल दूं कि वो एक बच्चा मेरे पास शिकायत लेके आया कि वन वे रिप्स लैब है, और उसमें क्या वो कहने लगा मेरी रिप्स फेल हो रही हैं, और फेलियर का मोड क्या था? टॉर्जन। अब मुझे ये बता दे कोई कि टॉर्जन में रिप्स कैसे फेल हो सकती हैं? राइट। ओके, तो वो थैंक यू। अच्छा, क्या कहते हैं सालेहा, आपका क्या इनपुट है? आइडेंटिफाई द गैप्स दैट यू सी, एंड आप कैसे समझती हैं कि वो स्टूडेंट लेवल के ऊपर व्हेन दे आर स्टडीइंग उन गैप्स को फुलफिल किया जा सकता है, वेदर लाइक यू नो एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करके, सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करके, या अपने लेवल के लाइक यू नो मजीद पढ़ाई करके फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स? दो चीजें, एक तो ये है कि मुझे समझ नहीं आता सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो फील्ड ट्रिप बहुत आसान है, इसके लिए तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक स्टूडेंट आता है उसको हकीकतन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, या स्लैब में जो स्टील डला हुआ है, जो बीम है, ये आप एक दफा भी किसी को साइट पे ले जाएंगे तो ये समझ आ जाएगा। बेसिक्स नहीं पता होती, बेसिक्स। और जबकि सिविल इंजीनियरिंग में तो ये नहीं है कि कोई हाई फाई जगह पे ले जाना है आपने। लड़कों से तो बल्कि मैं कहती हूँ कि भाई तुम लोग तो अपने नजदीक भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ हो रहा हो वहां जाके रोज खड़े हो जाओ ना, कि वहां देखो हो क्या रहा है ना। लेकिन फील्ड नॉलेज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बुकिश है जिसमें पता ही नहीं चल रहा होता ना। ये इसका तो मुझे वाकई समझ नहीं आता कि क्यों नहीं है ना, एक चीज। और ड्राइंग नहीं दूसरा कर वही है कि सकते। नहीं कर सकते, वही तो कह रहे ना आप साइड पे। अच्छा, फिर वाकई सॉफ्टवेयर ऑपरेटर बना दिया है, मतलब सॉफ्टवेयर को ऑपरेट जो सिखा रहा है। जब पूछो कि ई टाइप कहीं सीखा मुझे, और वाकई शिकवा है मुझे बड़ा कि ना, ये टीचर्स जब सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं तो हर उसके साथ आप साथ में ये भी बताएं कि इसकी क्या रीजन है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसके ना करने से क्या है, करने से क्या है वो छोड़ दे, इसके ना करने से क्या है। कि अगर हमने डायफ्राम नहीं असाइन किया तो क्या होगा, असाइन तो करवाना सिखा दिया, लेकिन उसको करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे। तो ये चीज होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा गैप है कि यानी यूं समझो, ऐसा लगता है कि वो इंजीनियरिंग के बाद वो वहां से सीखना शुरू करता है जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाता है। अब उसकी लक कि उसको सीनियर कैसे मिले, उसके फ्यूचर सारा इस पे डिपेंड करता है कि उसको वहां सीनियर कैसे मिले, जो उसे इनकरेज कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, आगे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए मतलब ये थोड़ा मैं कहती हूँ कि जरूर इस, और ये कोई मुश्किल चीज नहीं। शाजिया, आपका क्या इनपुट है? मैं थोड़ा सा ये कहूंगी अस्मा के मैंने अगर किसी इंजीनियर को हायर किया है तो मेरे जहन में ये है कि ये इंजीनियर है, इसका भी अपना एक लेवल है, और ये बहुत ज्यादा मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। ठीक है, उसमें वक्त के साथ उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, अभी वो मेरे मेरे लेवल पे आके मुझसे बात नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ा है वो पोर्ट्रे होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ कर आए। और मोस्टली बच्चे, आजकल के बच्चे खुसूसन मैं ये कहूंगी कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर स्किल्स उनके बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। बहुत अच्छा ई टैप्स का मॉडल शायद अगर हम 6 घंटे में बनाएंगे तो वो 2 घंटे में बना लेंगे। तो ये भी एक अच्छी स्किल है कि उनको आता है। ठीक है, उनको सिखाना, उनको पढ़ाना, ये अब सीनियर की जिम्मेदारी है। मतलब उनमें ये चीज होनी चाहिए कि हाउ ईगर दे आर टू लर्न अपने सीनियर से, कि वो क्या सीखना चाह रहे हैं। आप जितना सीनियर से आप निकलवा सकते हैं आप निकलवाएं, ये आप पे स्किल होनी चाहिए। आप सब कुछ सीख कर नहीं आ सकते। बेसिक नॉलेज जो है वो बच्चों में होती है कि वो कैसे कंप्यूटर, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा कोड चल रहा है, कोड की। जैसे मेरे पास अगर मैं किसी फ्रेश इंजीनियर को हायर करती हूँ तो मैं उसको कंप्यूटर नहीं देती, मैं पहले उसको कोड देती हूँ और उसको एक प्रोजेक्ट उससे जो है मैनुअली करवाती हूँ, उससे कहती हूँ लोड निकालो, बेसिक चीजें सीख लो
कि कैसे लोड आ रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूंगी, तो मैं उसको ये सिखाती हूँ। अब उसके स्किल्स ये हैं कि वो उसको कितना सीख रहा है, कैसे अगले प्रोजेक्ट में अप्लाई कर, ये नहीं कि अगले प्रोजेक्ट में वो मुझे 100% रिजल्ट देगा, नहीं, उसने कितना सीखा। तो ये जो है ना, टीम वर्क होता है, सीनियर जूनियर मिलके काम कर रहे होते हैं। बस ईगरनेस होनी चाहिए, आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि आप क्या यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, स्ट्रक्चर क्या चीज है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या चीज है, और सॉफ्टवेयर आप कैसे हैंडल करेंगे। मैं जो चीज 5 घंटे में करूंगी, अगर मुझे एक बच्चा 2 घंटे में मेरे 3 घंटे बचा रहा है, तो वेरी गुड। और आजकल बच्चों की कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर हैंड हमसे बहुत अच्छा है, और अब उनको ट्रेन करना, उसको सिखाना, ये अब हमारे स्किल्स हैं। तो हमें अपने स्किल्स भी जो है वो दिखाने पड़ेंगे। बच्चे वो नहीं होते, बच्चों को जैसे जैसे मौके मिलते हैं बच्चे कर रहे हैं। जो आपका सिस्टम है, जो आपकी एनएडी की टीचिंग फैकल्टी है, वो जो दे रही है, ठीक है। अब बच्चा इतने एफर्ट्स नहीं कर सकता जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तो अब आप उसको कैसे यूज करेंगे, ये एक गुड मैनेजर की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। तो मैं इतना गैप नहीं समझती कि जी मुझ में और एक फ्रेश इंजीनियर में बहुत गैप होगा, नो। मतलब ये एक जूनियर सीनियर का गैप तो हो सकता है, लेकिन जो है एज सच वो भी इंजीनियर है, हमारी कैलिबर का है, पढ़कर आया है, मेरिट पर आया है, तो मैं उसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकती। Thank you. So, okay. So if my question was that, what is the gap that you see in when jab koi engineer, when they start working or when you are at the time of the interviewing or afterwards, कि आप ये सोचते हैं कि हमारे करिकुलम में ये गैप था, या जब वो पढ़ रहे थे ये गैप था, and comparing that with the consulting work. So one point was that the basic, sometimes Asha said that the basic lack of basic knowledge. So for example, जैसे Shazia ने identify किया कि if she asks engineer that how to calculate a dead load or how to calculate a live load and all those loading, you should have that knowledge at least. आपने वो gap नजर नहीं आना चाहिए. So if like and I'm giving that example because Shazia ने cite किया, if I give that from my transportation और traffic perspective, कि अगर आपने for example कोई किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ traffic और transportation का काम होता है, so just have that कि planning कैसे होती है, urban planning में क्या important चीजें हैं, and then you should have that knowledge. There should not be a gap. Try to fulfill that gap. या आपका क्या क्या impacts होंगे अगर additional traffic किसी road पे आएगी तो उसके क्या impacts होंगे. And then the personal interest and grooming is needed at the student level. Again, including the soft skills, know-how of the software. And there is a phrase that says junk in, junk out. Agar software ko kuch nahi pata, software is intelligent to a computer level. It's the engineering judgment that, in the end counts. तो अगर आपको सॉफ्टवेयर ने कोई रिजल्ट दिया भी है, so think about it. Even if when you are doing your final year project, कि बीम में शेयर के आई है तो ये सही लोकेशन पर आई है, या नेगेटिव मूवमेंट आया तो वो सही लोकेशन पर आया, या पॉजिटिव मूवमेंट आया है तो सही लोकेशन पर आया. यू एटलीस्ट हैव दैट बेसिक नॉलेज. रीड द मैनुअल, रीड योर ट्यूटोरियल व्हेन यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर. और द प्रोग्रामिंग स्किल्स, learn those. Engineering judgment, and Soliha identified one thing. She said site trips and field trips, and one I think मैंने एक trend देखा है students में, when of course I coordinate with you, all of you guys, that you seek for going to an office environment directly when you call it, after graduation, कि हमें एक office job चाहिए, but that is important. But site positions भी बहुत important रखती है. If you are अगर आप किसी साइट पे जा रहे हैं, एंड इवन व्हेन यू आर एट द स्टूडेंट लेवल, जाके कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है साइट्स पे, अगर आप जाकर देखें कि उसमें किस तरह से बीम पोर हो रही है, स्लैब पोर हो रही है, स्टील उसमें किस तरह से डला हुआ है, या पोस्ट टेंशनिंग या प्री टेंशनिंग. सो दैट फील्ड ट्रिप, फील्ड नॉलेज, ट्राई टू अक्वायर इट ऑन योर ओन इफ यू आर नॉट, अगर आपको ऑफर नहीं की जा रही यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर. सो यू कैन आप अपना ग्रुप बना लें स्टूडेंट्स. एक बात मैं बोलूंगी, जी कहिए. एक बात मैं ये बोलूंगी कि बच्चे जब प्रोफेशनल उसमें आ रहे हैं, जिस फील्ड में एडमिशन्स हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज्यादातर ये है कि हम कहते हैं जी अब तो इंजीनियर बन के निकलेंगे.
तो ये नहीं है, आप पे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जब आप किसी प्रोफेशनल फील्ड आप अडॉप्ट कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो आप उसकी बेसिक नॉलेज लो, आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करो, आप उसको टाइम दो। आप ये नहीं कि टाइम आपका इधर उधर मोबाइल पे और इस पे हो रहा है, नहीं, अब आप अपने आप को सीरियस, उस पे मैच्योरिटी शो होनी चाहिए आपकी टुवर्ड्स योर फील्ड। और मैच्योरिटी आपकी डे 1 से होनी चाहिए कि आप उसको, अपनी फील्ड को कैसे लेके चल रहे हैं आगे। आपने अपना करियर इसमें परसू करना है। करियर ये नहीं होता कि आपने 4 साल तो मस्तियों में गुजार दिया फिर आ गए कि जी जॉब दे दो। नहीं, पूरे 4 साल आपको डे 1 से अपने आप को उस पे ग्रूम करना है, उस फील्ड पे अपने आप को लेकर आना है। एंड देन फिर जब आप आएंगे फील्ड में तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। लेकिन यूजुअली हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं 4 साल तो अपने वेस्ट कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं जी जॉब ही नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा इनको सीरियस एटीट्यूड चाहिए जो मुझे नजर आता है, और मेच्योरिटी के टुवर्ड्स देयर फील्ड। Okay. So, and I think these are the point to be noted, Dr. Suhail, कि हमें जो students को, you know, at the grooming level, soft skills, the software, and you know, like bringing that seriousness in their attitude, especially when they are about to graduate, okay, or and then presentations, their confidence level, and all those skills, you know, and then giving them the knowledge of the software, whichever field they are going to. So, okay, so that here ends the panel discussion, and now we will take questions from the students. So, Dr. Sohail, मैं आपको hand over करूँ. Are you taking care of that? Yeah, I can do that. No Okay. problem. First of all, thank you. They are great advice. और मेरा ख्याल है कि जो NED scholars के students होंगे यहाँ पे, they might have a better idea now कि जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो 4 साल हैं, इसमें जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अपने कोर्स के अलावा, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। उसमें आप अपनी स्किल सेट बढ़ा रहे होते हैं। मेरे पास कई क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, और लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ये जो पहला सवाल था, ये सवाल मेरा ख्याल का जवाब दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी पहला सवाल ये था कि इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन द GPA और योर प्रैक्टिकल वर्क, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? इट डिपेंड्स ऑन CV। मतलब आप किसी सीनियर का आ रहे हैं तो उसका GP नहीं देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी फ्रेश का CV आ रहा है तो उसको ऑब्वियस उसमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो वो उसका GPA मैटर करेगा। Okay. दूसरा सवाल ये था कि जब हम आजकल जो है, देयर आर सेवरल फॉर्मेट रेज्यूमेस के जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसको आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कैन बी एनीथिंग? इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, और मैंने पहले भी कहा था कि उसमें एक्सेसिव वोकैबुलरी ना डालें आप, और आप CV में वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो आपको आता हो। नेवर एवर लाई इन योर CV। एक्स्ट्रा चीजें ना आपके जो भी इंटरव्यू होगा वो बेस करेगा आपके CV पर, एंड इट शुड बी वेरी ट्रू। अच्छा, ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है बात जो आपने कही, कि ये जो मैं इन सबको यही मशवरा देता हूँ कि जिंदगी में एक चीज से बचो, और वो है झूठ। जितना ज्यादा बचोगे इससे, उतना ही ज्यादा खुश रहोगे आगे में। एक झूठ आसानी अपने लिए ही करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सवाल है कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इट इज यूजफुल टू नो हाउ टू लर्न सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सच एज पाइथन, जावा, C++। पाइथन इज वेरी यूजफुल, खासतौर पे आजकल के बिम एनवायरनमेंट के लिए। इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं जैसे डायनमो वगैरह, उसमें यूज़ होती है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल स्किल टू हैव, अगर आपका ग्रेजुएट लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो। नॉट C++ और जावा तो बिल्कुल भी नहीं जो है, लेकिन मे बी सम नॉलेज ऑफ C++, लेकिन पाइथन इज अ वेरी यूजफुल स्किल टू हैव। देखिए, कोई भी चीज जो आपके एकेडमिक नॉलेज से हटके होगी वो यकीनन आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी।
एडिटिव होगी, आपकी नॉलेज में कोई चीज़ ऐड करेगी, ठीक है ना। तो आपके लिए जो भी अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं आप उसको ज़रूर लर्न करें। अच्छा, एक चीज़ मतलब जो मैं वैसे जो बच्चे आते हैं उनसे भी कहती हूँ कि देखें, एक पूरा बैच है, ठीक है, वो इंजीनियर बन के निकल रहा है, सबको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादातर सभी इंजीनियर हैं और सभी अच्छा पढ़ रहे हैं। अब आपने अपने आप को उसमें प्रोमिनेंट करना है, तो कैसे प्रोमिनेंट होंगे? इसी तरीके से होंगे ना कि कुछ आपने एक्स्ट्रा सीखा हो जो सपोर्ट करे आपके फील्ड को, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होंगी। आप जब ये करेंगे तभी आप जब बाहर निकलेंगे तो लगेगा ना कि आपने कुछ किया, वरना तो पूरे के पूरे बैच इतनी यूनिवर्सिटी निकाल रही है ना, उस पे जरूर जोर देना कि उससे रिलेटेड जो मैं कहती हूँ जितने भी ये सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, इधर उधर किसी और चीज के बजाय टाइम लगाने के इस पे जरूर लगाएं। यानी मैं खुद कहती हूँ कि जब भी हम किसी भी सेमिनार से उठते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कुछ ना सीखा हो, कुछ ना कुछ सीखा होता है। बहुत ज़बरदस्त बात करी है साला आपने। मैं फिर कहूँगा ये जितने स्कॉलर्स सुन रहे हैं ये वाली बात, ये देखें, ये वही बात है जो हम आपको बार बार रिमाइंड करवाते हैं। इसीलिए जो ये वेबिनार्स होते हैं और सेमिनार्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो अभी स्केच का आप लोगों ने ऑटो कैड की और स्केच की ट्रेनिंग हासिल करी है जिन लोगों ने, वी पेड फॉर 15 एंड ओनली 6 शोड अप ओवर देयर। तो ये बताता है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। वही बात है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू डोंट कैन नॉट मेक देम ड्रिंक। अगर आप खुद नहीं करेंगे, आपके दिमाग में नहीं होगी चीज करने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सके। रह गया कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन इज एवरीवेयर। अभी जैसे बता रहे थे ये सब जगह यूज होती है। ये आपका इंटेलेक्ट है जो ये बताएगा कि किसी भी कंपनी को कि मैं उस कंपनी के का जो प्रोडक्ट है उसके लिहाज से मैं अपनी स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ। और जितना ज्यादा आप ये बताएंगे कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, बेनिफिशियल फायदेमंद, बजाय ये कहना कि मैं आया हूँ यहाँ पे लर्न करने के लिए, आई वांट टू लर्न। लाइक वो कोई इंस्टीट्यूट खोला हुआ है उसने जो आप लर्न करने जा रहे हो वहां पे, वो तो इंस्टीट्यूट नहीं है, वो कंपनी है, वो दे आर देयर टू मेक मनी। द क्वेश्चन इज हाउ आर यू show हेल्प। they have to show that we are the beneficial for your company, तो वो एक्सेप्ट करेगा जी। मैं डॉक्टर सुहेल इसमें ऐड करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पहले आपने मैकेनिकल इंजीनियर ने पूछा था डिफरेंट सॉफ्टवेयर का, पाइथन। आई एम नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर बट आई एम मैं इंशाल्लाह पाइथन लर्न करने वाली हूँ। एंड द रीज़न इज दिस के पाइथन इज you know, the data visualization and data mining is everywhere, like even like talking from the traffic engineering and transportation planning perspective, because there is so much data out there. So even यहाँ पे in the US the companies are now asking their employees to get those certifications of Python, so ताकि आप data mining कर सकें. So even if you are not a mechanical engineer, try to learn those skills. Again, और फिर एक और चीज़, going back to the interview, कि when I interview the fresh graduates, or when I'm like, you know, I have those resumes, कि why should I hire you? That is one question, because I have like, you know, 10 other resumes. Why you? So you have to show that why you. And then the second thing is this, you know, what is okay, where do you want to see yourself in 5 years? That is another question, which is a very common question. कि आपके अपने लिए क्या plans है? Where do you want to see yourself in 5 years? Do you want to, you know, stay and learn here, or you want to learn more and, you know, excel in your field? So just know what you are envisioning for the future. सवाल ये है कि go ahead, कोई जी, मैं बस ये कह रही थी कि एक पाइथन के अलावा एक मैं सजेशन और देना चाहूँगी कि जो बच्चे आ रहे हैं, इफ दे आर विलिंग टू लर्न लैंग्वेज, तो विजुअल बेसिक इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव टूल, क्योंकि वो एक्सेल में भी काम आती है, मैक्रोस में, वो कैड में भी काम आती है, वो रिविट में भी काम आती है। तो इट्स अ वेरी हैंडी लैंग्वेज टू हैव, जो है अगर आपको वो आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभार ये स्टूडेंट भूल जाते हैं ये वाली बात कि जब आप लर्निंग फेज में होते हैं 4 साल के, जितनी नई चीजें आ रही हैं मार्केट के अंदर, ट्राई टू गेट सम नॉलेज अबाउट दैट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अभी आप कह रही हैं पाइथन, मैं तो कहता हूँ आर भी सीखें।
वो भी फायदेमंद होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए समझना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज बेसिकली एन इवॉल्विंग फील्ड। हम मैकेट्रॉनिक्स में जब तक नहीं जाएंगे आजकल के लिहाज से, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्पीट, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू गो आउटसाइड यूएस वगैरह या मिडिल ईस्ट वगैरह जाना चाहेंगे तो। उसमें टोटली कैड एंड कैम पे शिफ्ट हो गया एंड उसमें अगर आपको नहीं आती हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये सवाल है कि ड्रेस के ऊपर, जब आपने कहा कि ड्रेस होना चाहिए, कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड है आप जो लड़के या लड़कियों के लिए? सिंपल, दोनों जो है ना ये जहन में रखें कि हम कोई पार्टी वियर ना पहने। एक चीज, ना पार्टी वियर ना कैजुअल, ये दो बस नहीं हो। जब आपका ना पार्टी वियर होगा, जब ना कैजुअल होगा, तो सब सिंपल हो सबसे ज्यादा। यानी मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बस ध्यान में रखें कि ना हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, ना किसी हम फ्रेंड के पास जा रहे हैं, ना कैजुअल है ना पार्टी है। तो तीसरा जो होता है ना, वो हमेशा बहुत डिसेंट और सिंपल होता है। मेरा ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऑफिस एनवायरनमेंट से आपके मैच होना चाहिए, कि आपका कैसा ऑफिस ड्रेसअप कैसे होना चाहिए। ये एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको ऑफिस में प्रॉपर शूज होने चाहिए, प्रॉपर। बाज बच्चे जो है बगैर इस्त्री के पहनकर आ जाए, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बस अच्छे प्रॉपरली ड्रेसअप होने चाहिए, ऑफिस एनवायरनमेंट को मैच करे, दैट्स इट। अगर आप लड़के के लिए आपको ब्रांडेड कह रहे हैं कि सिंपल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे लड़के हैं तो मतलब ये नहीं कि वो जीन्स पहन के जा रहे हैं, नहीं, इंटरव्यू के लिए नहीं होती है जीन्स ना, जीन्स एंड जॉगर्स ना, ये आपके इंटरव्यू के ड्रेसेस नहीं है। इसी तरह लड़कियां जो है, मतलब आप वही कह रहे हैं ना, आप इतना फैंसी पहन के जा रही है, नहीं, आप इंटरव्यू देने जा रही है, इट शुड बी वेरी सिंपल। ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे हमेशा ये होता है कि वैसे हमारे इसके ऊपर चैट के ऊपर आप कुछ इनपुट देना चाह रही थी? हाँ, कोई और? नहीं कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ। ये हमारे जो इनसे इसमें सवाल ये भी था कि अब्रॉड कौन सा पहना जाता है, तो मेरा ख्याल है उसका जवाब मिल गया होगा सबको। ये वत्साफ साहब ने लिख दिया था उसमें, ये कनाडा में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया था। अच्छा, ये रेज्यूमे मेकिंग जो है, और ये इसके लिए में वो एक सवाल ये है कि इफ वी हैव प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन समथिंग, will it be appropriate to write that thing in the resume that we have done this particular type of work also? यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट किसी ने लिखी है। अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूंगी कि रेज्यूमे में आप ये भी डालें, और अगर कोई आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस आपका, तो वो भी आपका उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये आपकी एडिशनल स्किल्स हैं जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यूअर पर होगा, आपकी पर्सनैलिटी को और पोर्ट्रे करेंगे ना। जो भी आपकी अचीवमेंट है वो रिफ्लेक्ट जरूर होनी चाहिए सीवी में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक आपको कम्युनिकेशन कई तरह की होती है। ये रिटन कम्युनिकेशन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब किसी को बताएंगे तो मे भी प्रिपेयर रहें इस बात के लिए कि आपने अगर कहा है कि मैंने रिपोर्ट लिखी है, तो उसके 1-2 सैंपल्स जरूर लेके जाएं साथ, कि ऐसा ना होगा कोई वो आपसे पूछ ले, रिपोर्ट तो दिखाएं क्या लिखा था आपने। बिल्कुल, रिपोर्ट अपने साथ रखें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अच्छा जनाब अली, basic software skill, Arshad Saab have said that the basic software engineering is necessary to all engineers. So how many software is required? इसका जवाब I think आ चुका है। एक और GPA जो है, what GPA is considered to be a good GPA? 4.0? नहीं देखें, yes, it's the best one. मिनिमम क्राइटेरिया फॉर जीपीए वेरीज। आई थिंक कि मैं जो देखता हूँ 3.5 से कम नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा मतलब मुझे फिर भी ये होता है कि मैं इसके लिए सॉफ्ट माइंड रखती हूँ। मैंने कहा कि कई चीजें होती हैं, मैं थोड़ा यही मैंने कहा ना कि मैं कंसिस्टेंसी देख रही होती हूँ कि पिछले रिजल्ट क्या है, और दूसरा ये है कि आपने उससे रिलेटेड वही कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज की हुई हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो है आपने कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट ली है तो जीपीए कम जीपीए को वो कवर कर लेती हैं आप।
अब मैं आपको बताऊं अरशद, बिल्कुल सही। अरशद जीपीए जो होता है वो ज्यादातर लड़कियों के बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लड़के बेचारे जो है जीपीए उनके कम होते हैं, तो क्या उनको नौकरी ना दे? नहीं, नौकरी जरूर दे, मैंने वही कहा ना, एक्स्ट्रा अचीवमेंट जो है वो फिर कवर करती है चीजों को। जैसे साड़िया ने मैं कह रही हूँ, हाँ, कि आपने कोई अगर एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, आपने कैट कोर्स किया हुआ है, आपने कोई सॉफ्टवेयर कोर्स किया हुआ है, या दिस इज आपने कोई नॉट और द extra, हाँ फिर जीपीए को थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जा जी सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अरशद, हम इसलिए लोग मतलब इतना मिनॉरिटी में हैं, ये खवातीन सही कहना चाह रही हैं इस वक्त, लेकिन आपने नोट किया होगा मैं ज्यादातर खामोशी से सुन रहा हूँ इनकी बातें। नहीं, ये बड़ा अच्छा एक वो है हमारा प्रॉब्लम कि हमें अच्छा इसको इसलिए कहता हूँ प्रॉब्लम कि ये बताता है मेच्योरिटी लेवल्स। और हमारे यहाँ क्या ये दुनिया भर के अंदर लड़कियों का मेच्योरिटी लेवल जरा जल्दी आ जाता है उनकी उम्र के लिहाज से, तो वो ज्यादा सेंसिबल बातें कर रही होती हैं। मैंने एक लड़का और एक लड़की की परवरिश करी है, मैं जान सकता हूँ कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, एक ही जगह एक ही लेकिन एनवायरनमेंट में। नहीं, वो लड़कियां मेच्योर होती हैं घर के मामलात में, लेकिन अगर मैं फील्ड में देखूँ ना तो मुझे लड़कों में ज्यादा मेच्योरिटी नजर आती है। वहां पे लड़कियां मुझे ज्यादा इमेच्योर नजर आती हैं प्रैक्टिकल इस लाइफ में। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि हाँ, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड इन माय ओपिनियन internships are very important as they give some insight of the future and the knowledge of the field. I would like to know panelists' thoughts and guidance on that. वेल Internships के ऊपर। इंटर्नशिप बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। It's a connection between industry and the university. So it is very important for students to have their internship programs every maybe in 4 years program, 1 or 2. लेकिन एक चीज बताऊं मैं, हमारे पास बच्चे जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनके जहन में सिर्फ क्या होता है कि किसी तरीके से सर्टिफिकेट मिल जाए, 4th वीक कंप्लीट हो जाए। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो उसको सीरियस नहीं लेते, जबकि मैं कहती हूँ ये हमारे ही जमाने से शुरू हुआ था कि एनईडी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह डॉक्टर होते हैं पहले से वो उसके एनवायरनमेंट के आदी होते हैं, तो एक दफा ऑफिस बैठ के हमें भी तभी पता चला था ऑफिस होता क्या है, वरना तो स्टूडेंट लाइफ से आप जब एकदम ऑफिस जाते हैं तो ये वाकई बहुत हॉरिबल होता है ना। इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बच्चे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और लेकिन ये बच्चे इस लिहाज से ये सोचकर आते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेशन करें। आपको पता चलता है ड्यूरिंग इंटर्नशिप कि आपकी एकेडमिक नॉलेज किस तरह इम्प्लीमेंट होती है प्रैक्टिकली, हम किस तरह उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, और वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटर्नशिप का बेसिक पर्पस यही है कि आपको एक फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें आप अपने स्कूल को जज कर सकें और वर्किंग एनवायरनमेंट को आप रियलिटी में देख सकें। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ ये भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे क्या सारे ही बच्चे जो ज्वाइन करने आते हैं प्रैक्टिकल की, उनका एक बहुत बेसिक सवाल होता है और बड़ा वैलिड सवाल होता है कि हमें सैलरी क्या मिलेगी। और हमारे यहाँ जो सिचुएशन है आजकल, जिन सैलरी से नए बच्चों को लिया जा रहा है, वो हमें खुद इंसल्टिंग लगती है, सीधी बात है, इट्स इंसल्टिंग। लेकिन उसको कवर करने के लिए क्या होनी चाहिए मुझे नहीं समझ में आता है। कंसल्टिंग इंजीनियर्स का ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू के, वो कहते हैं कि वो बच्चे आते हैं उनको कुछ नहीं आता, तो हम वाई डू वी पे देम। बच्चे कहते हैं कि हमारा कम से कम आजकल की सूरत हाल में इतना तो हो कि हमारा आने जाने का खर्चा निकल जाए, हम अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो तो पूरा कर लें, इतना तो हो। तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह कवर किया जा सकता है, या तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम का कोई पोर्शन 4 ईयर का या एडिशनल टाइम ऐसा हो कि जो एज एन जैसे बाहर होता है कि एज एन EIT इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट लाया जाए जिसमें कम सैलरीज हो लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग मिल सके, या कोई और मेथड हो सकता है, आई डोंट नो। तो इज देयर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड के मिनिमम कोई है अक्रॉस द इंडस्ट्री कि भाई आपको इतने पैसों से कम नहीं दिया जाएगा? नहीं मेरा तो कि अस्मा, ये तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो ये कैपेसिटी डिमांड की एक जो हमारा जो रूल होता है ये उस पे बेस करता है।
तो आजकल और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा डिस्टर्ब फैक्टर हुआ है। नहीं, इसके लिए अगर आप ये लाजमी कर दें, बहुत सारी चीजों में जो है टेक्निकल लोग वर्क कर रहे हैं जहाँ पे इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है, अगर ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ना, ये इसको लाजमी तौर पे ये कर दे कि इंजीनियर ही हायर करना जरूरी है, तो ये खुद ब खुद ये चीज जो है ना ये कवर हो जाएगी। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि इंटर्नशिप के बारे में एनईडी स्कॉलर हमेशा ढूंढता रहता है ऐसे पार्टनर्स जो हमें ये प्रोवाइड कर सके इंटर्नशिप। लोया एसोसिएट्स के अंदर हमारा कांटेक्ट होता है मिसेस इरम साद से यहाँ पे, और साद जो हैं आई थिंक वो उनका कोई रिलेशनशिप बनता है लोया वालों से। तो हमें बड़ा उन्होंने आज से 3-4 साल पहले तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमको, और एटलीस्ट 2 to 3 स्टूडेंट्स एवरी ईयर वी यूज टू गो देयर। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पैरागॉन वाले हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। और लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अभी जैसे नई फील्ड्स आई हैं, फूड इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, केमिकल है। अब ये ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे सोहेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं मालूम वहाँ पे कौन लोग हैं जो कि इस फील्ड के अंदर हैं और जो हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके सीनियर्स अगर हों, वो हमको गाइडेंस देते रहें कि भाई ये इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एक दोस्त था उस केएमसी के अंदर, डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल, उसने हमको 14 इंटर्नशिप ऑफर करी थी दिसंबर में। अल्लाह को मंजूर ये था कि उसको जनवरी में उसका इंतकाल हो गया। तो हम नहीं कह, कभी कुछ चीज हम आगे तरफ जाते हैं तो 3 कदम पीछे आ जाते हैं। तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग हेल्प कर सकें तो प्लीज रिमेंबर दैट। एक सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। एक चीज मुझे आपसे ये पूछनी है, जब उसने 14 ऑफर किए थे तो अपने इंस्टीट्यूट के लिए किए थे ना, कोई पर्सनल उसके लिए तो नहीं किए थे ना? ये ऑफर तो रिमेन रहनी चाहिए उसके जाने के बाद भी। तो साहब वहां पे अब आए हैं ना उनकी जगह, वो इस बात को मानने को ये तो बड़ी ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि उसने कोई पर्सनल उसकी वो नहीं थी उनका। हाँ, मतलब आप मुझे ये बताएं, अगर इस तरह से किसी ने ज्वाइन किया हुआ उसकी फिर डेथ हो जाती तो वो 14 बाहर होते। मतलब ये चीजें मुझे समझ नहीं आता है, ये हमारे यहाँ पर्सनल कैसे हो जाती हैं, ये इंस्टीट्यूट्स है। हाँ? तो बहुत मुझे अजीब सा लगा कि डॉक्टर साहब मैं एक बात कहूंगी, डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं चीफ इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मैं लोया एसोसिएट में होता हूँ, और हमारी फर्म की यही पॉलिसी है कि हम मैक्सिमम जितने इंटर्नशिप पे हम अकोमोडेट कर सके हम करते हैं। सम टाइम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम इनवाइट कर लेते हैं लोगों को, और रीज़न उसका सिर्फ यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि जो फ्रेश इंजीनियर आ रहे हैं उनको एटलीस्ट हम इतना ट्रेन कर दें कि वो आगे चल के किसी भी कंसल्टेंसी में अप्लाई करना चाहें तो वो इजीली वो उसको मीट कर सके। तो अच्छा, ये और मेरा ख्याल है कि हर फर्म ये काम कर रही है अपने अपने लेवल पे, जिसकी जितनी कैपेसिटी है हर कोई इसमें अपना हिस्सा मिला रहा है। जज़ाकल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। शादी आप कुछ कह रही थी? जी मैं ये कहना चाह रही थी इंटर्नशिप के उससे कि स्टूडेंट्स जब इंटर्नशिप करें तो जैसे अब बीइंग ए सिविल इंजीनियर हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, लाइक डिज़ाइन भी है, साइट भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है एंड अदर फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स 3-4 उसमें अपनी इंटर्नशिप करें, अपना इंटरेस्ट देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप हुआ है। देन जब वो जॉब के लिए जाएं, अपनी प्रोफेशनल उसमें जाएं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर था, आप वहां पे जॉब सर्च करें। अब अक्सर क्या होता है कि बच्चे डिजाइन में आने के बाद उनको 6 महीने के बाद रियलाइज होता है नहीं यार हमें डिजाइन नहीं करना, अब हमें साइट पे जाना है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम इतने होने चाहिए कि बच्चे अपनी फील्ड को सही से डिसिप्लिन को चूज कर सके कि उनको किस चीज में परसू करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक प्रोग्राम की बजाय जो है एक महीने के आप 3-4 प्रोग्राम्स रखें ताकि बच्चों को पता चल जाए, हर फील्ड की नॉलेज हो थोड़ी सी। Let me say something about this. पहली बात तो ये गलती से जब गलतफहमियां बहुत सारी हो जाती है तो मैं एक गलतफहमी खत्म कर दूं। पहले हमारे नाम के आगे एनईडी लगा हुआ है, लेकिन हमारा एनईडी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स के अंदर कोई दखल नहीं दे सकते।
तो ये नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि वो कन्वे करें। शाजिया बेसिकली एक जनरल सजेशन है ये, शाजिया जो है वो एक जनरल सजेशन दे रही हैं, और आई एग्री विद दिस कि ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि और स्टूडेंट को इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने आप को खुद असेस कर सके कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ उसका एप्टीट्यूड है। इसमें एक सवाल ये है कि एक सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर के इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब आपसे इंट्रोड्यूस के लिए पूछा जा रहा है तो ये सवाल ये था कि इनका कि जब मैं इसका जवाब दूं तो शुड आई मेंशन थिंग्स दैट आर देयर इन माय रेज्यूमे और कैन टॉक अदर देन द थिंग्स रिटन इन माय रेज्यूमे। Guys can hear me? Yes, let us think. Okay. While you guys are thinking, let me get another one. How does the recruiter know or observe that a candidate is hungry to learn and is basically fit for their work environment? What is that cue that makes a thing click hua कि यार ये this is the guy or this is the girl? बिल्कुल, ये जो है ये जब आप किसी चले फलक आप कर लें पहले। सॉरी सालिया, गो अहेड। असल में जब ये मैंने यही कहा ना कि अगर वो इंस्टीट्यूट के बारे में जानता है जिसके लिए इंटरव्यू देने आ रहा है ना, तो लाजमी तौर पे वो कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे हमें ये लगेगा कि उसको हमारे इस काम में, जैसे वही है कि मैं डिजाइनिंग की, वो डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। अब वो जब उससे पूछा जा रहा है तो मुझे इसकी और किसी लाइफ से कोई गर्ज नहीं है ना, कि जैसे मैं कहूँगी आपने बारे में बताएं तो क्या है कि वो मेरी फील्ड में जिसमें मैं आप उसे रखना चाह रही हूँ उसमें वो क्या कर सकता है और क्या करना चाह रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत एप्लीकेबल होगा और मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगी ना। यानी मुझे उन चीजों से जो उससे रिलेटेड है, जब भी मैं कह रही हूँ कि जब वो जहाँ जाए तो उसे पता होना चाहिए कि उस कंपनी का मेन डोमेन क्या है और वो उससे रिलेटेड अपना इंटरेस्ट शो करेगा तो दूसरे के लिए उसमें इंटरेस्ट होगा, वरना उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। शाजिया प्लीज। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, सबसे पहले जो आपने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें उसका रेज्यूमे, उसका पर्सनालिटी, सब चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अदर देन रेज्यूमे भी हर चीज़ आप जो है पेपर पे लिख के नहीं दे सकते। हम ये कह रहे हैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में आप दूसरी चीज़ें भी बोल सकते हैं। और जहाँ तक ये रहा है कि वो मुझे कैसे पता चलेगा कि ही इज़ हाउ ईगर टू लर्न ऑन हाउ ही इज़ बेनिफिशिएंट टू मी, तो वो यही है कि आपस में जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो मैंने ये कहा था कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस वो एम्प्लॉयर से भी, इंटरव्यूअर से भी कर सकता है। उससे पता चलेगा कि ये बच्चा कितना ईगर है आगे बढ़ने के लिए, उसके सवाल उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो कहाँ तक जा सकता है। अगर वो डम बैठा रहे, जी जो पूछा जवाब दे दिया और उसके बाद उसके अंदर की वो चीज सामने नहीं आएगी, और वो कैसे आएगी जब तक कि वो मुझसे क्वेश्चन ना करे, मेरे से जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उससे रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ ये बच्चे में आगे बढ़ने का ईगरनेस है, ही वांट टू लर्न समथिंग, तो उसको ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है। इसमें मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड हो रही है तो उसको जरा बाद में देख लीजिएगा। पैनल ने एक बड़ी अच्छी बात करी थी शुरू में कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो इन चीज़ों के ऊपर जब आप बात कर रहे हो। तो इसमें बहुत ही फाइन लाइन होती है कि आप किस तरह एड्रेस कर रहे हैं दूसरे को, किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह आप किसी टेक्निकल स्किल्स के बारे में जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं भी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए या कोई स्टूपिडिटी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जैसे लगे कि यू आर हार्ड हेडेड। अर्शद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहते, जब इंटरव्यू का बेसिक पर्पस यही होता है कि हम एक दूसरे से जब क्वेश्चन करते हैं, इवन वो स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयर हो, दोनों हो, तो एक दूसरे को बेसिकली जज कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर भी देख रहा होता है, उसके साथ भी 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल में करते हैं ताकि आपकी स्किल को चेक कर सकें और आपकी जो रिस्पॉन्स है उसको जज कर सकें। तो आपकी हर चीज़ को वो नंबरिंग कर रहे होते हैं, रेट कर रहे होते हैं, और उसी की बेस पे वो अपना डिसीजन रिकमेंड करते हैं चीज़ों को। एक चीज और एक चीज और जो मैं कह रही हूँ कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज में ये जहन में बच्चे रखें कि जब इंटरव्यूअर जो होता है ना, अगर उर्दू में क्वेश्चन कर रहा है तो आप रिप्लाई इंग्लिश में ना दें, आप उर्दू में दें। अगर इंग्लिश में कर रहा है तो आप इंग्लिश में रिप्लाई करें। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि हमारे यहाँ तो है ना बाइलैंग्वेज,
तो इसलिए यानी ये चीज जहन में रखें बच्चे ना। अच्छा, दूसरा ये कि एक सवाल सना बेटा, ये जो आपने सवाल किया है कि केमिकल इंजीनियर्स के लिए क्या सॉफ्ट स्किल नेसेसरी हैं, तो वो कौन सी हैं? तो बेटा ये सॉफ्ट स्किल सबके लिए एक ही जैसी होती हैं, ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करती कि किस इंजीनियरिंग बिल्कुल का ताल्लुक है आपका। बिल्कुल। शुड आई इंक्लूड माय वॉलंटियर एक्सपीरियंस इन माय रेज्यूमे? इन यूएसए इट इज मैंडेटरी, जितना आप लिखेंगे उतना ही अच्छा होता है। आप लोग बता देंगे पाकिस्तान के बारे में प्लीज। करना चाहिए वॉलंटियर। बिल्कुल इससे बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इससे लाइफ में वॉलंटियर उसकी सीरियसनेस एक्सपीरियंस होना नजर चाहिए। आती है। कि बिल्कुल। कोई भी एक्स्ट्रा अच्छा, कुछ कह अचीवमेंट, रहे थे कोई आप भी अब्दुल एक्स्ट्रा अरशद? आपकी क्वालिटी है, आप उसको जरूर मेंशन करें। चलिए, तो इसका मतलब है एवरीबॉडी इज वेरी मच इनटू दैट कि अगर आप लोगों ने कोई वॉलंटियर काम किया है तो ये स्कॉलर्स प्लीज रिमेंबर दैट, जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कुछ कर सकते हैं आप हमारे लिए, तो करें। बिल्कुल हाँ। थैंक यू। करें करें, वॉलंटरी इज वेरी नेसेसरी अब्दुल बासित का टू सवाल मूव है कि हाउ फॉरवर्ड। डू यू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल एट अ जॉब इंटरव्यू एंड वर्क प्लेस? by getting knowledge of the field. वही है कि सच लिखा हुआ होगा ना तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी। आपको हमेशा स्ट्रेस कब होती है कि आपको ये लगता है कि आप उस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए आप कैपेबल नहीं है। अगर आप जिस चीज के लिए कैपेबल है उसी के लिए अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस नहीं होती। और स्ट्रेस उसी वक्त होती है कि मैंने लिख क्या दिया है, मुझसे पूछ क्या ले। एक बात है, ख्याल रखें कभी कभार स्ट्रेस जो होती है बगैर किसी वजह से भी आ जाती है, होती है हाँ। तो उसको लेकिन मैं थी और मैं इससे एक ज्यादा पहले एक बताना आप या फिर सालिया? हाँ, सबसे पहले जो है वन बिलीव इन ऑन सेल्फ होता है। अगर आपको खुद अपने आप पे यकीन नहीं है तो फिर आप स्ट्रेस में जाएंगे। और इतना कम से कम कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो फिर आप उस अपने आप पे बिलीव करके जाएं, क्या आई कैन हैंडल दैट। अगर ये नहीं है तो आप स्ट्रेस में एक जाएंगे। चीज मैं एक बात कहूंगी कि आपको अगर अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना है और आपको पता है कि आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू स्ट्रेस होंगे, तो मैंने ये पहले भी कहा था कि आपको अपने आप को डे 1 से तैयार करना है व्हेन यू गेट द एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी। ये एक दिन का गेम नहीं है कि आपने नॉलेज ले ली और आप जाके इंटरव्यू देकर आए। आपको जब प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो उस दिन से आप इस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मैनेज करें, सीखें और वेल प्रिपेयर्ड होके इंटरव्यू पर आए। कि आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैं वही कह रही हूँ, आईईपी है, एनईडी भी देता है कि आपके पास ये जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग सेमिनार अटेंड करें, ये करें, उसमें आप क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आप वॉलंटियर वर्क करते हैं, तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। और दूसरा ये, उसके बावजूद मैं कहूंगी कि देखें, ये याद रखें कि 6 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनमें से एक ही रखा जाएगा ना, तो 5 को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। बच्चे हिम्मत ना जल्दी हारें। अगर आपको नहीं रखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके काबिल नहीं थे। लाजमी तौर पे 6 में से एक ही सिलेक्ट होना था ना, तो इसलिए आपको नहीं रखा है। और आप कहीं और जाएं, इससे बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप में कोई कमी थी तो आपको नहीं रखा है। यानी इसमें कोई नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर, और सबसे ज्यादा मैं जब भी कहूंगी कि ये सीनियर से जरूर सुना और पूछा करें। जो जितना कामयाब नजर आता है, जरा आप पूछें तो उसने भी सारी ये चीजें फेस की होती हैं। ये नहीं होता कि वो इतना कामयाब इसलिए था कि पहले अटेम्प्ट में उसको सेलेक्ट कर लिया गया था। बहुत अटेम्प्ट सबने की होती है। हर एक की लाइफ में आप देखें, वो अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि हमने भी जिंदगी में पहले अटेम्प्ट की थी, फिर उनमें से एक में कामयाबी होगी। 100% किसी की भी अटेम्प्ट जो होती है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होती। and I think over here मेरे ख्याल से I'm joking and not joking कि ये एक हिंट आप लोगों के लिए भी है, इंटरव्यूअर्स के लिए, कि when the students come to you for interview, make them feel easy, less stressful, offer them water and आप पूछें उनसे कि आप कैसे हैं, क्या है, and then begin the interview. और एक और मेरा क्वेश्चन है कि डू यू लाइक इट्स अ 1 पर्सन इंटरव्यू या एक से ज्यादा आप लोग इंटरव्यू करते हैं? अरशद, जैसे आप करते हैं, फिर आपके अलावा भी कोई इंटरव्यू करता है एट द सेम डे, इट्स अ पैनल, हाउ डज इट वर्क इन योर कंपनीज? अस्मा, ऐसा नहीं है। देखिए, जब इंटरव्यू करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। हम जब इंटरव्यू करते हैं तो पहले मैं उनसे इंटरव्यू करता हूँ और अपने रिकमेंडेशन दे के मैं अपने जो फाइनल हमारे एम्प्लॉयर जो होते हैं हम उनको सीवी फॉरवर्ड कर देते हैं कि सर ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे या 10 हमारे कैंडिडेट्स थे और ये हमने 2 शॉर्ट लिस्ट किए। फिर हम फाइनल इंटरव्यू के लिए उनको कॉल करते हैं, जो कि हमारे ओनर करते हैं हमारे साथ बैठ के। और फिर वो बेसिकली वो फाइनल इंटरव्यू समाओ उनको एक हम ऑफर लेटर हम उनको उसमें इंटरव्यू में इशू करते हैं।
तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। और ऑलमोस्ट वैसे सब जगह यही होता है कि पहले एक शॉर्टलिस्ट होता है, यानी सबका इंटरव्यू लिया जाता है इनिशियली, इसमें शॉर्टलिस्ट होता है, फिर जाहिर बात है किसी और इससे रिलेटेड फिर चीजें वो की जाती हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन हर जगह हर इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस किया जाता है। में नेस्पाक के अलावा नेस्पाक में पैनल बैठता है जो है, मैंने सिर्फ वहीं देखा है, अदरवाइज बाकी किसी कंसल्टेंसी में पैनल नहीं बैठ रहा होता है। और मैं सिर्फ अपनी जो हमारे जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें अहमद सफ़ी साहब और फर्रुख जमाल साहब और मुशीर साहब थे जो मैकेनिकल से रिलेटेड हैं सारे के सारे, उनकी भी गाइडेंस यही थी कि ज़्यादातर इंटरव्यू 1-on-1 होते हैं और उसमें आपसे अगर कोई चाहे स्टूडेंट्स तो ये इनके वीडियोस मौजूद हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर हमारे, तो उसको भी एक दफ़ा रिव्यू कर लें। एक सवाल ये आया था कि रेज्यूमे जो है वो 1 पेज का होना चाहिए था। बिनिश, यस इट शुड बी 1 पेज, वो बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हो और टू द पॉइंट हो तो बहुत अच्छा लगता है। 2 पेज में कम से कम मुझ जैसा आदमी तो कभी नहीं पढ़ता, 1 पेज ही पढ़ते हैं सिर्फ। प्लीज गाइड अस सॉफ्टवेयर ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। ताहिरा बेटा, ये आप ऐसा करिएगा कि जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसी में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे 4-5 सीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स हैं, वो आपको जवाब दे देंगे इसका। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? ओके, अच्छा सवाल है कि तैमूर आपने कुछ सवाल किया था, हैंड रेस किया हुआ है, तो प्लीज गो अहेड अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आपके 2 क्वेश्चन पहले के भी हैं, उसको भी पूछ लीजिएगा यहीं पे। Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for being here, for taking out time to give us the insight of what is happening on the other end of the table. मैंने पूछना ये था कि जैसे कि अभी हमने जीपीए की बात की, तो जो मैं एज ए स्टूडेंट फील करता हूँ वो ये कि मैं अपने एंड से मेहनत करता हूँ, और होता ये है जैसे ये ऑनलाइन सिस्टम जब से स्विच हुआ है, अब ये जो हमारा 4th ईयर चल रहा है, इसमें ऐसा हुआ था अभी करंटली कि हमने कुछ वीक्स फिजिकली पढ़ा था और उसके बाद वो स्विच हो गया ऑनलाइन पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, मतलब टीचर्स को भी हुई होगी, उनको भी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, हमें भी। इससे रिजल्ट ये निकला कि जो मैं फील कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं लगता मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन, हालांकि विद इन 1 वीक वी हैव एग्जाम्स, लेकिन मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी अच्छी है मुझे नहीं लगता। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मेरी जीपीए कम आएगी। तो क्या आप लोग इस चीज़ को भी कंसिडर करेंगे या करते हैं एज दिस ऑनलाइन बैच इज गोना पास आउट? क्या ये भी जहन में रखा जाएगा कि ये वो बैच था जो ऑनलाइन पढ़ के पास हुआ था? देखिए तैमूर, आपका जो क्वेश्चन है वो ये सिचुएशन जो है, रिसेंट सिचुएशन इस आपके साथ नहीं है, ये तो ओवरऑल सारे तमाम स्टूडेंट के साथ है। अगर रिजल्ट पे फर्क पड़ना है तो तमाम स्टूडेंट के रिजल्ट पे फर्क पड़ना चाहिए, और अगर इसमें कोई कम्पीट करता है तो फिर आप क्यों नहीं करते? तो ओवरऑल अगर जीपीए डाउन होता है तो तमाम स्टूडेंट का डाउन होगा, सिर्फ आपका अकेले डाउन नहीं होना चाहिए। ये agreed with go ahead agreed to अरशद कि सिचुएशन सबके लिए एक जैसी है, सब अगर सबके अच्छे आ रहे हैं तो आपके भी अच्छे आने चाहिए जीपीए। इसमें मैं आपको अमेरिका का वो बता दूं, आजकल हमारे यहाँ ये इसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है। उसका ये है कि हम बजाय इसके कि जीपीए अलॉट करने के, we are giving this option to the student that whether they want to get a pass or a fail, and that pass and fail will not going to get reflected in their GPA. तो अगर कोई स्टूडेंट समझ रहा है कि उसकी जीपीए ड्रॉप हो जाएगी बिकॉज उसकी 3.5 या 3.8 या 4 है, और ऑल ऑफ अ सडन किसी कोर्स के अंदर वो समझ रहा है कि ऑनलाइन में उसका रिजल्ट जो आया वो B+ आया, तो he or she can ask to drop that particular one, give them a passing grade which is a P, and P is not counted towards the GPA, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता फिर GPA के ऊपर, बस ये बताता है कि ये पास कर लिया इसने, स्टूडेंट ने पास और फेल के ऊपर। तो ये हर दुकान उसका अलग होता है। तैमूर, आपका एक और सवाल था यहाँ पे, क्वेश्चन बिहाइंड द क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बिहाइंड द क्वेश्चन, तो कुछ ये बताएंगे आप लोग, ये कॉन्सेप्ट जो है, इज इट ट्रू फॉर व्हेन यू गाइस आर इंटरव्यूइंग, कि आपका स्किल क्या है, फिर आपका पैशन क्या है, और क्या हमारे नीड्स को ये एड्रेस कर सकता है कैंडिडेट या नहीं कर सकता? तो ये जो क्वेश्चन बिहाइंड द क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये भी तैमूर का ही क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ, कोई अगर इस पे कुछ बोलना चाहे।
या तैमूर आप खुद एक्सप्लेन कर दें? May I? हाँ, श्योर, गो अहेड। बाय द वे, तैमूर जो है वो सिविल इंजीनियर है और ये ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं पहले से बता दूं आप लोगों को, तो आप लोग ख्याल रखिएगा। गो अहेड तैमूर। एक्चुअली सर ये मैंने एक कोर्स किया था विच वाज फॉर कैरियर प्रेप फेलोशिप, जो कि अमल एकेडमी करवाती है, जो कि पेप्सिको फंडेड कोर्स है। इट इज़ 3 मंथ्स कोर्स। वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो भी जैसे HR जो लोग होते हैं, दे हु आर इन द इंटरव्यू, उनका ये मोटिव होता है कि हमें हमारे पास जो जगह है हमें उसे फिल करनी है, हमारे पास जो भी वैकेंसी आई है हमें उसे फिल करना है। तो उसमें वो क्वेश्चन जो भी करते हैं, अब जैसे मैम ने बताया था कि जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ उससे उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ का अदर एक्सपीरियंस बताने लग जाएं। जिस जॉब के लिए आप आए हैं सिर्फ उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस बताएं। सो वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि सिर्फ 3 QBQ होते हैं हर क्वेश्चन के पीछे, जिसमें पहला ये होता है कि आपकी स्किल क्या है, आर यू स्किल्ड और नॉट, और दूसरा ये है कि आप इतने पैशनेट हैं इस जॉब के लिए, और थर्ड ये कि आप हमारी नीड्स को मीट करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि किस हद तक सही है ये कॉन्सेप्ट। काफी हद तक सही है मेरे ख्याल में। होता है और हम जज करते हैं इस तरह से बेस्ड अपॉन द आंसर्स वी आर गेटिंग, मेरे ख्याल में तो। हर इंटरव्यू में यही 3 चीजें देखी जाती हैं और ये जो है बिल्कुल सही है। यही इंटरव्यू का एक बेसिक फॉर्मूला कह लें आप कि यही है कि यही चीजें आपसे जज की जाएंगी, आपकी देखी जाएंगी। स्किल्स हैं आपके, आप कितने प्रोग्रेसिव हैं, आप कितना आप में पोटेंशियल है, दैट्स इट, एंड हाउ मच नॉलेज यू हैव, जॉब रिलेटेड नॉलेज। इसमें एक मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया है, इनके मुताबिक, मैं नाम नहीं ले रहा, जब आपसे क्वेश्चंस के अंदर कोई जो पर्सनल सवाल करते हैं लोग, तो मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में किस तरह होता है कि, तो सवाल यह है कि क्या पर्सनल सवाल भी होते हैं इसके अंदर? ये खातून ने सवाल किया है। ये नहीं, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होता। पर्सनल क्वेश्चन नहीं होता। पर्सनल क्वेश्चन से मुराद क्या है आपकी? मेरा ख्याल है वो उससे मैरिड अनमैरिड टाइप की चीजें पूछना चाह रही हैं। जी बिल्कुल पूछते हैं, बाज दफा लेडीज से पूछा जाता है, गर्ल्स से। बिल्कुल। वाई शाजिया क्यों पूछा जाता है? तो इसलिए पूछा जाता है आप हाँ ठीक है सौलिया, आप एक्सप्लेन करें। नहीं, बस वो इसलिए पूछा जाता है कि जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप कैसे आएंगी, क्या टाइमिंग्स होंगे, ताकि अगर बाद में कुछ इस तरह की चीजें हो ना तो फिर सपोर्ट की जा सके ऑफिस की तरफ से। मतलब ये सिर्फ मकसद होता है, यानी इसके लिए कोई ये नहीं होता कि सिर्फ के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, यानी ये रीजन नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हाँ अस्मा, मेरा क्या जो मैं पूछती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव यही होता है कि मैं बच्ची, किसी मैरिड बच्ची को अगर रख रही हूँ, उसके बच्चे हैं, तो उसका टाइम मुझे फिक्स करना पड़ेगा कि ये 9 to 5 जो है इसकी जॉब होगी और आफ्टर 5 इसको रोकना जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें देखी जाती हैं कि वो कितना ऑफिस को टाइम दे सकती है, क्या दे सकती है, इसलिए थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। अदरवाइज और कोई मकसद नहीं होता है कि ये जी मैरिड है और ये जो है इसको काम नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइमिंग्स वगैरह का इशू हो जाता है कि किस तरह कि आपका क्या रहेगा, अगर मैं आपको लेट सिटिंग का कहूँ तो आप करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये एक आप ये कल्चरल थोड़ा सा आप इसको कहेंगे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज को मैटर किया जाता है कि एक मैरिड है तो उसको जल्दी छुट्टी दे देंगे या वो रुक नहीं सकती। बाहर का कल्चर अलग है, वहां पे इन चीजों को नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पे कल्चरल बेसिस पर हमें ये 1-2 सवाल पर्सनल जिसको आप कह रहे हैं, ये पूछना पड़ता है। तो ये लेकिन नेगेटिव तो नहीं है ना? नो वे नेगेटिव नहीं, मैंने कहा ना, इसके बाद सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं हो रही होती है ये। हाँ, ये क्राइटेरिया नहीं है, नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है, रिजेक्शन का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये भी मैं बता दूं अस्मा कि जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसके बाद आप उससे फिर ये सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये पोस्ट का सवाल है, नॉट प्री। जी सवाल होते हैं इसमें। बाज़ दफा मैं ये भी पूछती हूँ खासतौर पे बच्चियों से कि
के रहती कहाँ हो, क्योंकि फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू कराची में जो है ना ट्रांसपोर्ट का हो जाता है, और मोस्टली इंजीनियरिंग फर्म जो है ये फैसिलिटी यहाँ नहीं दे रही होती हैं। तो अगर हम उसको किसी तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोई अरेंजमेंट करवा सकते हैं, उनका अपना होता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो और हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है तो फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। And just to add this कि मैं अरशद के ऑफिस गई थी अभी recently on my during my visit to Karachi, तो लोया एसोसिएट में I met with a big group of girls, like all of them, right Arshad? And like उनके जो main जहाँ पे वो जो उनकी पूरी engineering setting है, like I think there were 9 or 8 girls and some of them were married and they have kids and they were, you know, अपना schedule के हिसाब से वो काम करती हैं, but like there should not be any discrimination based on gender. That is the most important thing. यार ये मैं आप लोगों की बड़ी अच्छी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनली 14 साल से तो मुझे हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए, और मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत ऑपोजिट वो मिला है। जो आप मुझे बता रहे हैं आप तो उससे ऑपोजिट मुझे ओपिनियंस मिले, और उसमें सबसे बड़ा ओपिनियन जो होता है ना वो खराब, वो ये होता है कि वो सर उन्होंने मुझसे आखिर में ये पूछा था कि आप कहाँ रहती हैं, और ये ऑफिस जो था इनका आई चौधरीगढ़ रोड पे था, मैं जो हूँ लांडी में रहती हूँ। तो उन्होंने सुनने के बाद ये कहा कि वो आप आएंगी जाएंगी कैसे, और तो इतना देर लग जाएगी, आप चलें फिर हम देखते हैं आपको, फिर आपको बताते हैं आपका क्या हुआ। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई वहाँ से। तो ये एक मैं समझता हूँ अगर आप कैसी कंपनीज अगर इसको फैसिलिटेट कर रही हैं इस तरह से, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। और फिर कमिंग बैक टू माय स्कॉलर्स, देखिए मैं तमाम लड़कियों से यही कहता हूँ सबसे पहले कि पहले अपनी जब एनईडी में घुसने से पहले आप अपने अम्मी अब्बा से को राजी कर लें कि आपको जॉब करनी है, अपने दिमाग में बना लें कि आपको जॉब करनी है। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मुझे पहले बता दो भाई तुम लोग जॉब नहीं करोगी, इसलिए कि मैं लाखों रुपए आप पे वेस्ट करने के अलावा किसी और पे वेस्ट, लड़के पे वेस्ट कर दूंगा तो मुझे मालूम है कि वो एक घर चला लेगा। सॉरी, इट्स नथिंग टू डू विद द लेडीज इन द रूम। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक बच्चियां हमारी माशाल्लाह ऐसी हैं जो हमारे पास से पढ़ के निकली हैं, जो कि एक घर नहीं कई घर चला रही हैं अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी जॉब्स की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है कि लड़कियों को एम्पावरमेंट होना चाहिए इस बात का कि मुझे जॉब करनी है चाहे कुछ हो जाए। एक सवाल आया है ये, अच्छा ये मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड थोड़ा सा। ये एक ये समझे कि फाटा का हमारा एक स्टूडेंट है, और या फिर हमारा बलूचिस्तान का स्टूडेंट है, या हमारा किसी गांव का स्टूडेंट है सिंध के, या हमारे पंजाब के किसी गांव का स्टूडेंट है। ये इस तरह का सोचे जरा, ये एनवायरनमेंट है उसका जहाँ पे उसने बड़ी मुश्किल से पढ़ा और इतने मार्क्स हासिल कर लिए कि एनईडी में दाखिला हो गया उसका। अब वो ये पूछ रहा है कि इज द बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अफेक्ट एनी इंटरव्यू, और द वे आई एम टॉकिंग, जो मेरी लैंग्वेज है या मेरा जो बात करने का स्टाइल है, या मैं जब मैं किसी से बात करता हूँ मेरा एक एक्सेंट आता है उसके ऊपर, मैं पंजाबी को या उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो क्या ये तमाम चीजें देखी जाती हैं ये इंटरव्यू के अंदर? नहीं, कहाँ से आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखे एक चीज मैं फिर कहूंगी कि आपको 4 साल मिले थे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए ना, सही है, आपने उसमें अपने आप को ग्रूम क्यों नहीं किया? यानी अगर वो ग्रूम नहीं है ना तो मुझे वाकई अफसोस होता है कि ठीक है आपका कुछ भी बैकग्राउंड था, क्या यहाँ से बाहर बच्चे पढ़ने नहीं जाते? क्या उनकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती? मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजा ही इसलिए जाता है कि अब आप भी तो कुछ कोशिश करें, या आप अपनी पुरानी ही चीज को अपने ऊपर जो है ना इन्वॉल्व रखेंगे। आप कोशिश जरूर करें, और वो कोशिश बात एक्सेंट की हो रही है, बात एक्सेंट की हो रही है। नहीं, हाँ, एक्सेंट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता, और कभी इस पे कोई रिजेक्ट नहीं किया जाता, कभी नहीं रिजेक्ट किया जाता। यहाँ ऐसी जो करती हैं, मैं आपको बताऊं हमने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ है ऐसी फर्म्स जो गजाला को ले लेते हैं पहले, फिर अरशद मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ हैं बास फर्म्स जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं इस चीज़ पे, बिल्कुल करती हैं, लैंग्वेज पे भी करती हैं। और इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मुझे सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया गया था कि मैं नकाब लेती हूँ।
They literally say to my face कि आप नकाब लेती हैं, हम आपको नहीं रख सकते. Excuse me, Asma, can I leave now? Sure, sure. So there are. Thank you for your time. Actually, I have some guests. Thank you. Okay. Allah तो आप Hafiz. कुछ कह रहे थे? कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जितने भी हम अगर एक दो ऑफिस को अगर इस तरह हो सकता है तो हम उसको एग्जाम्पल नहीं बना सकते, लेकिन ऑन द होल इस तरह का कोई लैंग्वेज बैरियर या कोई पर्सनैलिटी क्लैश वगैरह की कोई कंसिडरेशन नहीं होती. सालिया की बात बिल्कुल 100% सही है कि आपको इतना टाइम मिलता है, आप अपने आप को ग्रूम करें. अगर आपको अपनी कोई वीकनेस पता चल रही है या आप फील कर रहे हैं तो आप उसको ग्रूम कर सकते हैं. ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आप ग्रूम नहीं कर सकते. अभी हमारे अपने ऑफिस में हमारी पॉलिसी के हिसाब से हमने उमरकोट के इंजीनियर्स को हायर करके अपने टीम में रखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि हम इन लोगों को प्रोमोट खुद करना चाहते हैं और वो अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहते हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल. उनमें कोई वो क्लाइंट डीलिंग वो करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, हर क्लाइंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें सलाहियतें हैं उनमें मौजूद. वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें और इस तरह का कोई बैरियर कहीं भी कोई कंसिडर नहीं किया जाता. नहीं, मेरे अपनी टीम में मौजूद है. मेरे पास एक बलूचिस्तान का है लड़का, ये 2 लड़के, एक वो जो है मानसेरा के पास का है, एक और है सवात के आगे का शांगला का, और वो ग्रूम हुए यहाँ ऑन जॉब ग्रूम हुए. वो जब आए थे तो वो उसको उर्दू भी बोलना नहीं आती थी सही, लेकिन वो रहा है 3-4 साल हो गए उसको, और अब वो जाता है, अकेले जाता है, हैंडल करता है चीजें, देखता है, क्लाइंट्स को डील करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, कोई मसला नहीं है उसको. वेल थैंक यू. मेरा ख्याल है सवाल तो मेरे पास ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे, और हम अराउंड 15 मिनट्स एक्स्ट्रा जा चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. वी यूजुअली एंड इन 90 मिनट्स. मैं अपने पैनल का और अपने कोऑर्डिनेटर साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ. यू गाइस have done a great job in explaining what's going on in Pakistan, how these kids can basically groom themselves. These are young professionals and they need advice like this. बड़ा खुशी हुई कि आप लोगों ने टाइम निकाला. आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑन बिहाफ ऑफ एनईडी स्कॉलर्स और हमारे डायरेक्टर्स के साथ थैंक यू अ लॉट. ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे पास, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अस्मा हमेशा हमारे लिए 2-3 ऐसे लोग लेके आती हैं कि जो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, और जो जो मैं समझता हूँ कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो कि सोशल इश्यूज हैं और जो कि इफ़ेक्ट करने लगे हैं बच्चों को, वो भी हम कोशिश करते हैं उनको रिमूव करवाने की, उनको एड्रेस करने की. तो थैंक यू अ लॉट. ये आपका जो जो आपने आज बच्चों के साथ जो वक्त गुजारा है, आई होप दे ऑल अप्रिशिएट इट. मैं आपको जो भी इनके कमेंट्स आएंगे बाद में, मुझे मालूम है ये कमेंट्स भेजते हैं, तो आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप जो आपने बनाया है. अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम निकालने का. अगेन थैंक यू डॉक्टर अस्मा फॉर अरेंजिंग दिस थिंग. अरशद, शाजिया, गजाला और सालिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू गाइस हैव डन फॉर आवर किड्स. थैंक यू. अच्छा, पैनलिस्ट से एक मुझे वो है रिक्वेस्ट है कि इफ यू नो कैन वी शेयर योर ईमेल एड्रेसेस विद द स्टूडेंट्स, नॉट बिकॉज वी वांट यू टू हायर देम इफ दे डोंट क्वालिफाई, जस्ट फॉर देयर ग्रूमिंग एंड फॉर देयर मेंटोरिंग के लिए, अगर उनको कोई क्वेश्चन हो फील्ड रिलेटेड और एनीथिंग. Sure. You can, Asma. You can share my email. कहना चाहूंगी कि लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है, एनीबडी कैन कनेक्ट टू मी फ्रॉम देयर. और जो फ्रेश बच्चे होते हैं मैं खासतौर पर उनको फॉलो करती हूँ. मैंने अपनी लास्ट 3 हायरिंग लिंक्डइन के थ्रू की हैं. तो वहाँ पे ये लोग सकते हैं, मैसेज करना हो कर सकते हैं. शाजिया कुछ आप कह रही थी अर्शद? जी, मैं ये कह रही थी, मैं अपनी फर्म में जो है टू फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है 6 मंथ्स का पीरियड देती हूँ कि वो यहाँ पर आए, सीखें और फिर अपने रास्ते तलाश करें. 6 महीने का मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स को 2, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो 2 को हम वो करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, और वो आए, सीखें और अपना रास्ते तलाश करें.
Great. तो LinkedIn पे प्रोफाइल बनाना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, and then I'll connect if the students ask, we'll connect them with you. I think ये बात जो आपने दोनों ने करी है, डॉक्टर अस्मा ने और अदाला ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आजकल के लिए। मैं तमाम स्कॉलर से कहूँगा कि वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। आई नो कि गुलाम हैदर का जो प्रोफाइल है या फिर उसामा का जो प्रोफाइल है ऑनलाइन और लिंक्डइन के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उसके पास अगर आप देखें जो कमेंट्स आते हैं, इवन यूएसए के कमेंट्स हैं उसके ऊपर, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसामा को। इसी तरह जो गुलाम हैदर का काम था, हालांकि वो पेट्रोलियम में है, लेकिन उसने जो पाइथन यूज करके जो मशीन लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर बनाया है, 3rd ईयर के अंदर आया है अभी वो। तो ये तमाम चीजें जो है ना देखी जाती हैं जब आपके प्रोफाइल्स स्ट्रांग होंगे और कई आपके फॉलोअर्स होंगे, कई लोगों ने आपके स्किल्स की गारंटी ली होगी और उसको रेकमेंड किया होगा। दिस ऑल अ ग्रेट थिंग। जैसे अभी शाजिया बता रही थी कि उन्होंने एक हायरिंग करी है बेस्ड ऑन, सॉरी गजाला आपने कहा था कि हायरिंग की है कि लिंक्डइन के प्रोफाइल को देख के। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा एवेन्यू है आप लोगों के पास कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अस्मा आप कुछ कह रही थी? अरशद से मैं कह रही थी, अरशद आप कुछ कहना चाह रहे थे इस सिलसिले में कि if we connect, if the students ask for your contact. Asma, you can share my personal email address, no issue. Anyone can send me the message or whatever they want. Are you on LinkedIn? Are Yes. you on LinkedIn? Okay. So Yes, LinkedIn is the best way of to communicate with these guys, I think. Again, thank you, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. We have a great time. At least I learn a lot today. ये दूर बैठने के बाद पाकिस्तान से और ना आने से, लेकिन ये जो छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे. Thank you all. Really appreciate. Thank you. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.